Okay, just let me know when you are able to see the screen. We are able to see, sir. Okay. So आज का टॉपिक है क्लाउड. It's a little bit technical, but I will try to make it a simple thing. क्योंकि ज़्यादा प्रोग्रामिंग वगैरह तो करनी नहीं इसमें. तो let us start with a question. What is your understanding about cloud? Cloud होता क्या है? Anyone from the analyst team? जरा मुझे बताओ. हम लोग बोलते हैं क्लाउड एप्लीकेशन है, क्लाउड पे होस्ट किया है. What is cloud? Anyone? Raghav, Aditi, anyone? Okay. So I think it is an external server which is not in our device, through which we can store or retrieve data and utilize it for other programming. So yeah, so you're partially correct. तो एक तो ये होता है कि हमेशा हम लोगों को कोई सर्वर चाहिए होता है where we host our applications, right? So we host our applications, databases, so we need some kind of a server. अब ये ट्रेडिशनल जो ओल्ड सिस्टम्स होते थे तो उसमें क्या होता था कि each organization was maintaining their own data center and एक IT रूम होता था. हर हॉस्पिटल में आज भी होता है कई जगह पे. They have a IT room, उनके servers होते हैं and they are deploying all their applications, databases on these servers. तो ये तो था old traditional model. अब latest model ये हो गया है कि they host their applications and databases on some remote location. The cloud is basically something which is present at a remote location. So it's like a network, and we can also call it like a internet. तो जैसे मान लो कि have you ever used any cloud? Amazon या कोई कुछ यूज किया? So Google. Okay. So Google Drive आप देख रहे होंगे. Google Drive में आप फाइल्स वगैरह अपलोड करते हो, शेयर करते हो, you make the changes in the files and all. तो ये जो भी आपकी एक्सेल शीट्स एंड फाइल्स हैं जो आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हो, इट इज मेंटेन्ड ऑन द गूगल क्लाउड. सो दिस सर्वर वेयर दिस फाइल्स आर होस्टेड, इट इज नॉट इन योर प्राइवेट डाटा सेंटर, इट इज होस्टेड बाय द गूगल के डाटा सेंटर में, एंड यू आर एबल टू एक्सेस गूगल ड्राइव थ्रू द इंटरनेट, है ना. तो बेसिकली इसको हम एक क्लाउड कह सकते हैं. इस तरह से आप जितने भी आप जीमेल वगैरह एक्सेस करते हो, ईमेल वगैरह, ये सब क्लाउड एप्लीकेशंस हैं. You just need an internet connection and you can access Gmail, you can access Hotmail. जितने भी emails हैं, they are all public cloud applications. तो cloud का simple definition हम कह सकते हैं is a network, is a kind of network and something which is present at a remote location. दूसरा जो फीचर होता है क्लाउड का कि it provides some services over the network. तो for example जैसे Google Drive है, तो Google Drive provide you the options that you can upload your data, documents, you can edit those documents, you can share the documents with other peers. तो ये services provide करता है. Similarly, Gmail है तो Gmail provide you the email functionality. So some kind of functionality, some kind of services are available over the network, generally over the internet. So all these applications like email, web conferencing. अब ये जो आप web conferencing कर रहे हो like Meet. Now this application is again is a cloud application. So all these application server, database जो है इसका या जो भी इसके बाकी components हैं, these are hosted in the cloud. And जो Meet का जो software vendor company है, that is offering the video conferencing services. So we just add the meeting invite, we bring the participants in the meeting, then we can make the calls, we can have the discussions. तो ये सारा का सारा services over the network available है. तो is it clear now what is cloud? Raghav? Yes sir. अब cloud computing क्या होता है? Now there is another word called cloud computing. So what is computing? And computing word is coming from computer. तो computing क्या होती है?
Can anyone tell me? Server processing of data. Yeah. Processing of data, कुछ भी manipulation कर रहे हो, processing कर रहे हो. You are writing some kind of program. वेद आपको जावा पढ़ा रहे हैं आजकल, तो जावा is one programming language and there are many other programming languages. So हर एक programming language में हमारा पर क्या होता है कि we kind of access the data, we kind of manipulate the data, we store the data in the database, और उसके बाद में different other applications होती हैं, उनके साथ interactions करते हैं हम लोग, and we share the data. तो primarily we are doing some sort of processing and ये सब इसीलिए हम एक अच्छा जो लैपटॉप खरीदते हैं तो वी ऑलवेज टॉक कि इसका प्रोसेसर अच्छी स्पीड का होना चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर रनिंग ऑन आवर लैपटॉप एंड दिस ऑल एप्लीकेशंस आर प्रोसेसिंग. सो हमारा प्रोसेसर एक्चुअली में प्रोसेस कर रहा होता है इसको. तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वे ऑफ मैनिपुलेटिंग और कॉन्फ़िगरिंग और एक्सेसिंग द एप्लीकेशंस ऑनलाइन. तो जनरली all these applications are hosted on a remote location. They are available through the network and we can manipulate these applications or access these applications from the internet. So basically cloud computing mein we have two parts. One is we need certain kind of softwares and then we need certain hardwares. तो hardware, software, networking सारे aspect cloud के अंदर आ जाते हैं. तो cloud का मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब जाके बादलों में जाके कोई application लगा दी. तो क्लाउड का मतलब ये है सिंपल कि रिमोट लोकेशन पे कुछ अपने डाटा सर्वर मेंटेन किए हुए हैं, उसमें अपना डाटाबेस वगैरह सब एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए हुए हैं एंड नाउ आपका जनरली यू कैन एक्सेस दोज सर्विसेज फ्रॉम अ रिमोट एरिया. So now this is a cloud computing architecture. Now you can see के जो center point है ये cloud के अंदर जो दिखाया हुआ है आपको, तो you have different applications, you have storage पर आपने database वगैरह host किया हुआ है, और ये आपको कोई ना कुछ infrastructure चाहिए उसको host करने के लिए, तो generally you need a server, you need a database server, you need a application server. Web application है तो you also need a web server. एंड उसके बाद आपको नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसका आईपी एड्रेसेस वगैरह कॉन्फ़िगर करने हैं. तो ये सब जो पार्ट है यू आर डूइंग इन ए रिमोट डाटा सेंटर. एंड ऑल अदर एप्लीकेशंस, चाहे वो आप मोबाइल ऐप से एक्सेस कर रहे हो या वेब ब्राउजर से एक्सेस कर रहे हो, दोज डिफरेंट यूजर्स कैन एक्सेस दैट एप्लीकेशन एज द सर्विसेज. सो दिस इज टिपिकल क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर. So basically, there are two basic concepts of cloud computing. तो एक तो होता है कि what are the different deployment models of these applications. So deployment model is kind of one way which characterizes the cloud applications कि कैसे उसको deploy किया हुआ है. And second thing is the service model. तो I will talk about both of these models. तो deployment model क्या होता है? तो deployment model ये होता है कि how the cloud is located basically. So what is the type of access to the cloud? So let us take one example. अभी जैसे आप गूगल ड्राइव की बात कर रहे हो, गूगल ड्राइव है और द ईमेल है, इसके लिए आप क्या है मतलब यू जस्ट नीड इंटरनेट. अब इंटरनेट है तो आई कैन जस्ट ओपन द जीमेल, अब उसमें जाके मैं अपना अकाउंट बना सकता हूँ. आई कैन क्रिएट माई ईमेल सर्विस अकाउंट, आई कैन स्टार्ट एक्सेसिंग ऑल द ईमेल्स. तो अगर मेरा जीमेल अकाउंट बन जाएगा देन आई कैन एक्सेस ऑल माई गूगल एप्लीकेशंस, जिसमें गूगल ड्राइव भी एक है. सो बेसिकली ऑल दिस डिफरेंट एप्लीकेशंस आई ओनली नीड द इंटरनेट. इंटरनेट के अलावा और कुछ चाहिए क्या उसके लिए? So these kind of applications are public, these are hosted on the public cloud. तो public cloud का मतलब ये होता है कि these applications can be accessed by anyone using internet. They are open for all kind of thing. So tell me one thing, Raghav or anyone. Can you give me any example of private cloud application? Hello? Sir, I think our Google Drive is private.
for a particular person. Can you hear me? Yes, sir. Okay. So private cloud is the another type of cloud access. आप बता सकते हो कि प्राइवेट क्लाउड एप्लीकेशंस क्या होती हैं? सर गूगल ड्राइव जैसे हो गया हमारा पर्टिकुलर हमारे लिए नहीं, बट गूगल ड्राइव तो आपके पास अगर जीमेल अकाउंट है तो कहीं से भी एक्सेस कर लोगे ना. अच्छा, जो एक ही जगह से एक्सेस है. अब आप मान लो कि आपके पास ये एक्सपेंसिफाई आप अपना डालते हो, एक्सपेंसेस वगैरह डालते हो मंथली, है ना? तो एक्सेस हेल्थ ने क्या है कि हमने एक्सपेंसिफाई की एप्लीकेशन ली हुई है और दिस इज काइंड ऑफ होस्टेड बाय सम सर्वर. कोई एक एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं उसके लिए, ये एप्लीकेशन किसी सर्वर में होस्ट है. तो जो हमारी एक्सपेंसिफाई एप्लीकेशन है, डू वी वांट टू शेयर इट विद अदर्स? हाँ, तो बेसिकली ये किसी मतलब प्राइवेट क्लाउड में काइंड ऑफ होस्ट कर सकते हैं इसको. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. अब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे फोर्टिस है या मैक्स हॉस्पिटल है, दे आर आल्सो यूजिंग देयर ओन क्लाउड्स. So they have their application servers, database servers hosted in their private cloud. तो ये जितने भी सर्वर्स हैं, इनकी एप्लीकेशन कौन एक्सेस करता है? Only the users who are authorized to access these applications. The rest of the world cannot, access it. आपके पास उसका URL अवेलेबल नहीं है कि आप जाके मतलब कि मैक्स की एप्लीकेशन वेब ब्राउजर पे खोलोगे. If they are making any mobile application, only you can access it through your mobile. बट उनका जो मेन सर्वर एप्लीकेशन है, दैट इज ओनली अवेलेबल टू द यूजर्स हु आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल. तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं जनरली दीज आर द प्राइवेट एप्लीकेशंस, प्राइवेट क्लाउड एप्लीकेशंस. उसको आप मतलब कि रेस्ट्रिक्ट कर देते हो टू अ सर्टेन यूजर ग्रुप जिसको आप एक्सेस देना चाहते हो, बट इट्स नॉट ओपन फॉर ऑल. So is it clear ki what is private and what is public? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Krishna, for example, AWS Mumbai, for example, that's a private cloud or a public cloud? So generally how you configure that, it depends on this. तो AWS जो है वो आपको क्लाउड सर्विसेज ऑफर कर रहा है. अब मैंने उसमें अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय की, उसके बाद में उसमें अगर मैं पब्लिक आईपी यूज करके अपनी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो आई कैन मेक इट अ पब्लिक क्लाउड. So that's more from the point of view of what you are deploying and using it for, right? So how I'm configuring my networking. तो अगर पब्लिक आईपी पे मैंने एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर किया है एंड आई एम गिविंग द एक्सेस टू ऑल, तो उसके अंदर डीएनएस सर्वर होता है जिसमें हम डोमेन एक्सेस पॉलिसीज डिफाइन करते हैं कि ये पब्लिक इंटरनेट पर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है. जैसे कल वेद बता रहे थे कि पोर्ट 80 होता है, वो हर एक मशीन में होता है. अब पोर्ट 80 के थ्रू आप कोई भी HTTP की एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो, एनी इंटरनेट एप्लीकेशन. तो वो पब्लिक एप्लीकेशन होता है, दैट इज अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स ऑन द इंटरनेट. अगर आप उसके नेटवर्क को के पोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दोगे कि ये पोर्ट्स एक्सेस सिर्फ मतलब इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ही हो सकते हैं, मतलब ओनली टू दिस यूजर ग्रुप हो सकते हैं, नॉट टू ऑल द अदर पीपल, सो देन वो आपका प्राइवेट नेटवर्किंग बन जाता है, प्राइवेट कॉन्फ़िगरेशन, प्राइवेट क्लाउड हो जाता है, विच इज काइंड ऑफ अंडर योर कंट्रोल. तो अगर मैंने AWS पे अपना अकाउंट लिया है और मैंने वहाँ अपने सर्वर्स इंस्टॉल कर दिए, अपने डाटाबेस इंस्टॉल कर दिए, and I have configured the IP addresses which are restricted to the users from my organization only, या जिनको मैं एक्सेस देना चाहता हूँ, then it become a private cloud. लेकिन अगर मैंने उस पर एक पब्लिक क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन किया और इंटरनेट एक्सेसिबल एप्लीकेशन डिप्लॉय की, तो वो पब्लिक क्लाउड बन जाता है. तो it offers both kind of configurations. The third type of cloud is a community cloud. You remember पहली कॉल में मैंने बताया था कि NDHP में गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट health community cloud. So can anyone tell me what is community cloud? Community क्या होता है?
So community is like samudaya, group. So if you allow the access to certain group of organizations, and you have this kind of network policy where you can configure what are the group of organizations you want to provide this service access. तो वो जो group होता है तो मतलब you are allowing the services to a community. So एक तरह का वो मतलब क्या होता है कि it's a public in the sense कि you are offering the services to a larger group. But it is restricted in the sense कि only the organizations who are registered can access those services. तो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट क्लाउड के अंदर क्या होता है कि जो भी आपकी हेल्थ एप्लीकेशंस हैं, यू वांट टू अलाउ देम टू द प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशंस हु आर रजिस्टर्ड. तो ऑल द हॉस्पिटल्स हैव टू बी रजिस्टर्ड एंड दे विल बी प्रोवाइडेड द एंड पॉइंट्स यूआरएल्स, और उन यूआरएल्स को यूज करके दे कैन एक्सेस द सर्विसेज. तो वो जो आपके ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स आपने कॉन्फ़िगर किए हैं, ओनली दे कैन एक्सेस द एप्लीकेशन. उसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन जाके नहीं देख सकते उसको. मतलब अगर कोई आप बोलोगे कि कोई डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन उसमें कनेक्ट हो गया या कोई वाटर सैनिटेशन का डिपार्टमेंट उसमें कनेक्ट हो गया, तो ऐसे नहीं है. ओनली द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर काइंड ऑफ कॉन्फ़िगर्ड, दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बिलोंग टू अ कम्युनिटी. वो कम्युनिटी आपने कॉन्फ़िगर कर दी उसके अंदर. तो हेल्थ कम्युनिटी क्लाउड जो गवर्नमेंट बात कर रही है, तो जनरली माइटी विल बी होस्टिंग दिस क्लाउड्स. सो दे विल बी कॉन्फ़िगरिंग द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, and to each organization they will be deciding the privileges, accesses, कि कौन किस मोड में एक्सेस करेगा उसको. तो जनरली हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में we have a concept of domain. We call it affinity domain. तो हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जैसे हम बात कर रहे थे, तो whenever you are configuring the hospitals, तो all the hospitals belonging to health information exchange, we can partition them under the different domains. तो आपने उसमें डिफरेंट डोमेन्स में मतलब आपने बोला कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं आपने उनको मिला के एक डोमेन बना दिया. मे बी जितने भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको मिला के एक डोमेन बना दिया. एंड द डोमेन इज काइंड ऑफ अ ग्रुप. नाउ टू अ पर्टिकुलर ग्रुप यू कैन असाइन द कॉमन सेट ऑफ पॉलिसीज. आप कॉमन सेट ऑफ पॉलिसीज में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि आई वांट टू अलाउ दिस सर्विस टू बी मेड अवेलेबल ओनली टू दिस ग्रुप. इस ग्रुप के अंदर मुझे फॉर एग्जांपल एनोनिमाइजर एज अ सर्विस प्रोवाइड करनी है, कंसेंट एज अ सर्विस प्रोवाइड करनी है, लेकिन किसी और ग्रुप के अंदर मुझे नहीं करनी है. तो दैट काइंड ऑफ, या मुझे कंसेंट फ्रेमवर्क में इस ग्रुप के लिए ये पॉलिसी सेट करनी है, इस ग्रुप के लिए ये पॉलिसी सेट करनी है. तो इफ आई एम काइंड ऑफ क्रिएटिंग द ग्रुप्स, तो फॉर ईच ग्रुप आई कैन कंट्रोल द एक्सेस. बेसिकली आई कैन डिसाइड द पॉलिसीज. तो पॉलिसीज को मैनेज करना ईजी होता है. तो इसलिए क्या होता है कि वी काइंड ऑफ पार्टीशन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इनटू सर्टेन ग्रुप्स, एंड टू ईच ग्रुप वी कैन काइंड ऑफ अलाउ द पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉलिसीज एंड द रूल्स. तो वो हम बोलते हैं कम्युनिटी बना देते हैं उसके अंदर. तो कम्युनिटी क्लाउड में आपके पास इस लेवल का कंट्रोल होता है कि यू कैन क्रिएट द ग्रुप्स, एंड टू ईच ग्रुप्स यू कैन डिटरमिन कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज विल बी अलाउड. तो पॉलिसीज आर नॉट ओनली नेटवर्किंग थिंग, उसमें आप सिक्योरिटी कैसे मैनेज करोगे या डिफरेंट पॉलिसीज आप अलाउ करना चाहते हो. तो हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में जनरली कम्युनिटी क्लाउड्स यूज होते हैं. एंड सो एनडीएचबी हैज अ प्लान कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि वी विल हैव द हेल्थ कम्युनिटी क्लाउड्स, एंड माइटी और एनआईसी विल बी होस्टिंग देम. सो एनी क्वेश्चन एनीवन कम्युनिटी क्लाउड के ऊपर? Krishan, you may have to elaborate that in terms of security. Why is it really required? Okay. So generally, there are two things of that. तो जब हम for example health information exchange की बात कर रहे हैं, तो lot of things we spoke about. तो we talked कि जो patient का डाटा होगा, तो patient का डाटा में it has to have a data privacy, data security. patient को consent देना पड़ेगा. And only with the proper consent, data can be exchanged. So there are some set of policies which are associated with the exchange of data. अब अगर हम नॉर्मल उसको इंटरनेट सर्विस की तरह लेके चले, तो आप जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, इफ यू सी फॉर एग्जांपल, अगर मैंने गूगल ड्राइव की एप्लीकेशन है, गूगल ड्राइव की एप्लीकेशन मैंने पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, इट्स अ पब्लिक क्लाउड एप्लीकेशन. सो आई कैन जस्ट ओपन अ जीमेल अकाउंट, वो मेरा यूजर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, एंड आई कैन एक्सेस ऑल द सर्विसेज. अब उसके बाद में
my data is kind of controlled by all the securities which is security aspect which is controlled by Google, not beyond that. तो उसमें मेरा डाटा जो है प्रोटेक्टेड है या मेरा डाटा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा है, nobody can access it, but beyond that that there are no specific set of policies could be controlled in that. Health perspective say some additional kind of security rules have to be implemented. HIPAA it very clearly says कि data has to be secured, privacy has to be ensured, consent mechanism होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए कि कोई बीच में हैकर आपका डाटा टैंपर ना कर सके. तो एडिशनल सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड. तो अगर हम कोई क्लाउड एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं हेल्थ डोमेन में, तो वी कैन नॉट जस्ट अलाउ इट टू बी अ पब्लिक एप्लीकेशन. वी कैन नॉट जस्ट एक्सेस इट फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट एंश्योर, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पब्लिक पेशेंट का जो हेल्थ डाटा है दैट इज काइंड ऑफ टेकन एज वेरी सेंसिटिव. एंड डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है टॉक्स अबाउट कि हेल्थ का पेशेंट का जो डाटा इट शुड नॉट बी अलाउड टू बी एक्सेस बाय एनी अनऑथराइज्ड यूजर. ओनली द users to whom patient give his consent should have the access to that data. तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो it doesn't mean कि who is requesting the data and you are only ensuring कि requester का आप चेक करोगे कि requester का कंट्रोल है, उसके पास access privileges हैं कि नहीं है. You have to also ensure कि जब आप उस डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हो over the cloud, तो cloud services में आपका डाटा सिक्योर है. नो नेटवर्क हैकिंग कुड बी डन, या कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर रहा है डाटा को, कोई अनऑथराइज्ड स्टोरेज नहीं कर रहा है डाटा का. तो ऑल दोस एस्पेक्ट्स आर कमिंग. फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जो क्लाउड हम जिन क्लाउड्स पे हम हेल्थ एप्लीकेशन, जैसे आप कोई HIS सर्वर अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटीज. और आप जो NDHP आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ऑल दीज एडिशनल कंट्रोल्स नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड. आपका हेल्थ, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, कंसेंट, ये सारी चीजें आ जाएंगी. तो कम्युनिटी क्लाउड पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट जो बात कर रही है, तो कम्युनिटी क्लाउड में ये सारे कंट्रोल्स मैनेज होंगे. एंड द अदर थिंग व्हाट आई स्पोक इज कि कम्युनिटी क्लाउड में यू कैन कंट्रोल द पॉलिसीज एट द ग्रुप लेवल, कि आप डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज दे सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, कि आप बोलते हो कि जो स्मॉल सब सेंटर्स हैं, PSCs हैं, CSCs हैं, अब उस लेवल पर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा. दे कैन नॉट डिप्लॉय ऑल द एप्लीकेशंस, और काइंड ऑफ एनोनिमाइजर आपने बात की कि एनोनिमाइजर चाहिए, कंसेंट मैनेजर चाहिए. तो ऑल दीज कंपोनेंट्स दे कैन नॉट इंस्टॉल. दे नीड दीज सर्विसेज टू बी अवेलेबल फ्रॉम द क्लाउड. अब ये क्लाउड एप्लीकेशन है, दीज आर ओनली स्पेसिफिक टू द हेल्थ डोमेन. ये सिर्फ उस ग्रुप को अलाउड होनी चाहिए. दीज एप्लीकेशंस हैव टू बी ऑन द सिक्योर क्लाउड. This cannot be available on the private cloud. So community cloud kind of provide you all the privileges of a private cloud, but it also allows you to make the application accessible by a larger group. Generally जो private cloud होता है वो एक ही organization के कंट्रोल में होता है. तो उस organization की different branches होती हैं, वो उसको access कर रही होती हैं, not to the wider kind of thing. Any more doubts here? I will try to clarify this. And the third thing is the hybrid cloud. So hybrid cloud generally जो हम बोलते हैं, तो कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि public cloud is for the public system, private cloud is for the private hospitals. तो ऐसा नहीं है. To some extent you can compare like that, क्योंकि private cloud is always under control of a private organization. मतलब one organization who is carrying his own data center. तो मेरा अपना data center है, वो मैंने अपने हॉस्पिटल में मेंटेन ना करके AWS में अपना अकाउंट ओपन किया, and I created all my servers, database servers, everything there. But it is kind of in my control. और public जो होता है, public applications, as I said, कि these are general internet applications. हाइब्रिड क्लाउड होता है जिसके अंदर आप कुछ सेंसिटिव डाटा है जो आप हाइड करना चाहते हो एंड वांट टू कंट्रोल इन अ प्राइवेट डोमेन, बट सम ऑफ द सर्विसेज यू वांट टू ऑफर ऑन द पब्लिक साइड एज वेल. तो इस काइंड ऑफ अ मिक्स मोड अप्रोच. तो फॉर एग्जांपल आपने एक HIS सर्वर इंस्टॉल किया, एंड HIS सर्वर की जो भी एप्लीकेशंस यूजर एक्सेस कर रहे हैं विद इन द हॉस्पिटल, they are kind of using it as a private cloud.
जैसे आपने एक प्राइवेट सर्वर आपने यूज किया हुआ है एंड आपने एक एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल किया एंड यू आर ओनली अलाउइंग द एप्लीकेशन एक्सेस बाय द पर्टिकुलर यूजर्स टू whom you want the application to access. पर आप कुछ एप्लीकेशन की जो सर्विसेज हैं यू वांट टू मेक अवेलेबल ओवर द इंटरनेट एज वेल. तो फॉर एग्जांपल अब हम बात कर रहे हैं कि ई ऑब्जेक्ट्स होंगे सर्वर से ई ऑब्जेक्ट्स आपको चाहिए व्हेनेवर यू आर एक्सचेंजिंग द डाटा you need to e-claim, e-discharge summary. तो each private data center would need a gateway server. तो उसमें उनको एक gateway server चाहिए. This gateway server will be acting between the private side and the public side. तो कुछ services होंगी जो public side में उनको open करनी पड़ेगी. Now yesterday Ved was talking about the REST services. तो ये जो web services होती हैं तो these are the services. This is a mode of accessing the services over the web. So there is another kind of services which are Windows services. तो आप अपने लैपटॉप में अगर देखोगे तो lot of scheduling jobs are running. आप देखते होंगे कि मैं आपको नोटिफिकेशन आ जाता है विंडो का कि ये अपडेट्स आपको इंस्टॉल करने चाहिए तो अपडेट्स होते हैं. lot of other services window is running. तो विंडो में आप अपनी सर्विसेज को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो. यू कैन सेट द टास्क, शेड्यूल कर सकते हो उसके अंदर. तो दीज आर ऑल विंडो सर्विसेज जो एक पर्टिकुलर मशीन के अंदर ये सर्विसेज रन कर रही होती हैं. इट्स लाइक अ जॉब विच इज रनिंग विद इन दैट मशीन. अब आपको मशीन टू मशीन अगर इंटरेक्शन करना है तो यू ऑलवेज नीड है. पहले टाइम में क्या होता था कि इसमें कोरबा EJB ये सब टेक्नोलॉजी यूज करते थे. इफ यू आर एक्सेसिंग द एप्लीकेशंस फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, तो आपने सर्वर किसी और मशीन में इंस्टॉल किया, क्लाइंट आपने कहीं दूसरी मशीन में है, तो you need an interaction between machine to machine. Then we brought a broader concept कि ये सारा जो है अपना HTTP पे अगर प्रोटोकॉल पे एक्सेस करते हो, इंटरनेट नेटवर्क पे करते हो इंटरनेट पर, तो दोनों आपका सर्वर कहीं भी हो सकता है, क्लाइंट कहीं भी हो सकता है. तो क्लाउड वाला कंसेप्ट आ गया इसके अंदर. तो जनरली ऑल दीज एप्लीकेशंस आर एक्सेसिबल ओवर HTTP पोर्ट. और whenever you are accessing the services over the web, यानी HTTP पर अगर एक्सेस कर रहे हो तो these are web services. तो as Ved was telling yesterday कि web services can be SOAP services or it can be REST services, and he talked about REST already. तो ये जो gateway server होगा basically, तो gateway server require some sort of web services to communicate with the external world. अब आपको अगर claim भेजना है या e-objects भेजने हैं तो जो आपको e-object health claim platform को भेजना होगा NHA के, that is a web service. You need to send the payload या मैसेज जो भी आप भेज रहे हो ऑब्जेक्ट का, that has to send from the web service through the internet. लेकिन आपका जो बाकी जो फंक्शनैलिटी है आपकी HIS की, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, ये सब आप विद इन द हॉस्पिटल यूजर्स को प्रोवाइड करना चाहते हो. that you don't want that to be accessible from the internet. तो उसमें क्या होगा कि you have to make the kind of networking configuration in a way कि you have to restrict certain services to be made available to the private set of users and rest of the services to be accessible over the web service in the public internet. तो बीच में जो सर्वर इसमें काम करेगा, जो एक ब्रोकर की तरह काम करेगा दोनों साइड के, वो होगा गेटवे सर्वर. और जनरली हमारे डाटा सेंटर्स में एक DMG जोन होता है, डीमिलिटराइज्ड जोन. तो जो भी सर्वर DMG में कॉन्फ़िगर किया जाता है वो एक्चुअली इसमें डबल फायरवॉल्स होती हैं. एक फायरवॉल जो होती है वो पब्लिक साइड में होती है, पब्लिक IP को के ट्रैफिक को कंट्रोल करती है एंड वी कैन कॉन्फ़िगर द रूल्स. तो फायरवॉल एक्चुअली क्या होता है कि फायरवॉल में आप इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि आपका जो ट्रैफिक जो डाटा आ रहा है इनसाइड, इनबाउंड या जो आउटसाइड, तो यू आर कंट्रोलिंग दैट कि आप किन एप्लीकेशंस का डाटा अलाउ करते हो, किस पोर्ट को ओपन करते हो, किसको रेस्ट्रिक्ट करते हो. तो इवन इन योर मशीन्स यू हैव द फायरवॉल. हर एक लैपटॉप में फायरवॉल होता है. कई बार ऐसा होता है हमारा पोर्ट ब्लॉक हो जाता है तो हमें वो जाके फायरवॉल में कंट्रोल करना होता है. जितने भी वायरस स्कैनर प्रोग्राम्स होते हैं दे मैनेज योर फायरवॉल्स. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि DMG जोन जो होता है तो इसमें जो भी सर्वर रखा जाता है दैट इज इंटरमीडिएरी सर्वर बिटवीन योर एप्लीकेशन सर्वर्स जो प्राइवेट साइड में रखे हुए हैं, जो जिसका IP सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस हो सकता है, और कुछ जो आपकी वेब सर्विसेज है जो आपको आउटसाइड इंटरनेट पे एक्सेस करनी है तो वो दोनों के बीच में ऐड करता है. अब एज्यूम करो कि आपने इंटरनेट सर्वर अगर आपने अपने मेन एप्लीकेशन सर्वर के साथ ही रख दिया तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपका इंटरनेट का जो ट्रैफिक है वो ओपन हो गया.
अब एक बार ट्रैफिक अगर आपका ओपन हो गया तो एप्लीकेशन सर्वर पे पहुंचने में हैकर को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एक सर्वर को हिट करेगा और जितने भी सर्वर उस पर्टिकुलर जोन में आपने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं अंडर द सेम नेटवर्किंग लेयर, तो ही कैन एक्सेस दोज, तो हैकिंग हो जाएगी। तो यू कैन नॉट अलाउ योर डाटाबेस सर्वर और योर एप्लीकेशन सर्वर टू बी मेड ओपन टू द पब्लिक, बट सेम टाइम योर गेटवे सर्वर इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस द वेब सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। तो इसके लिए आपको हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो इस तरह के जो क्लाउड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो हाइब्रिड क्लाउड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जिनमें दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट कॉम्बिनेशन होता है। So Raghav or anyone in the analyst team, any doubt please feel free to ask here. ये थोड़ा टेक्निकल है तो समझना चाहिए आपको, क्योंकि we always talk about cloud. So any questions here? No sir. सर एक बार आपसे जो नॉर्मल होते हैं जैसे हमारे आई क्लाउड्स वगैरह हो गए एप्पल के, तो वो हमारा एक प्राइवेट क्लाउड है। ओके, कौन से वाला क्लाउड बोला आपने राघव? गौरव सर आई क्लाउड्स नहीं होते, जो आई क्लाउड होता है जो आप एक आई क्लाउड है जैसे गूगल का क्लाउड। ओके ओके, तो सर वो भी प्राइवेट क्लाउड ही हुआ क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक्सेस है उसका, या फिर वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है इसलिए वो क्या हुआ सर? देखो मैं आपको एक लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। IHMR का जैसे एक सर्वर था, तो आपके IHMR के एप्लीकेशन सर्वर में उन्होंने कुछ कुछ एप्लीकेशन डाली हुई थी आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड, देन HR एप्लीकेशन आप जो भी मैनेज करते हो, वो सर्वर मान लो कि उन्होंने ये सब एप्लीकेशंस क्लाउड पर यूज कर रहे हैं। तो IHMR दिल्ली की जो एप्लीकेशंस हैं उसके लिए उन्होंने एक IP एड्रेस या सेट ऑफ IP एड्रेसेस एलोकेट कर दिए कि ये जो सर्विसेज हैं ये IP एड्रेसेस रिजर्व्ड है IHMR के लिए। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी हमें वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी होती है तो हम जाके अपना डोमेन IP कॉन्फ़िगर कराते हैं, उसको IP एड्रेस मतलब कि खरीदते हैं, मतलब कि IP एड्रेस का ये जो रेंज है ये हम लोग अपने लिए यूज करेंगे। दैट इज नॉट ओपन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। IP एड्रेस आपने हमेशा देखा होगा कि 4 पार्ट्स होते हैं, 255.255.255.255। तो 0.0.0.0 से स्टार्ट होके 255.255.255.255 तो इतने तक आपके IP एड्रेसेस हो सकते हैं, तो मिलियंस ट्रिलियंस में जाते हैं। तो आपका जैसे जनरली मशीन में आपने देखा होगा 192.168.1.9, तो ये आपका IP एड्रेस हो गया। तो हर मशीन का एक IP एड्रेस होता है, ये वेद ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो जिस तरह से आपका एक नेम होता है एंड यू आर यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय योर नेम, या हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है and he is uniquely identified by the roll number. Similarly, in the internet, each application is identified by a unique IP address, which are the 4 parts. अब ये जो IP address होते हैं ना, ये कुछ IP address होते हैं जो public IP address होते हैं, which are configured to be used over the internet. और बाकी जो IP addresses होते हैं वो restricted होते हैं, मतलब वो एक particular organization अपने लिए use करता है। जैसे IHMR दिल्ली ने अपने लिए एक set of IP addresses reserve कर लिए, and all these application services are hosted over these IP addresses, तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल होगी। तो क्लाउड इज नथिंग, क्लाउड तो एक रिमोट लोकेशन है जहां पर जाके मैं अपना जैसे मैंने AWS में अपना अकाउंट ओपन किया, उधर जाके मैंने अपना एक सर्वर क्रिएट कर दिया, वी कॉल इट EC2 इंस्टेंस, आई विल जस्ट टॉक अबाउट इट। फिर उसके ऊपर मैंने एक डाटाबेस सर्वर ले लिया, अपनी एप्लीकेशन बना दी, डाल दी। उसके बाद में वो मुझे अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, तो जनरल जो होता है वो IP एड्रेस मिलता है मेरे को, तो IP एड्रेस मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, तो मेरी एप्लीकेशन ओवर द क्लाउड एक्सेस होगी। एंड क्योंकि IP एड्रेस है तो एनीवन कैन एक्सेस इट, बट देयर इज अ प्रोविजन कि आई कैन यूज माय पर्टिकुलर IP एड्रेस देयर, तो आई कैन कंट्रोल इट। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी क्लाउड वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं कि आई कैन रिजर्व ए पर्टिकुलर IP एड्रेस फॉर माई यूज, तो वो हो जाता है प्राइवेट। तो जो मैं पब्लिक प्राइवेट की आपको बात करना चाह रहा हूँ वो यहां से कंट्रोल होती है कि आप नेटवर्किंग किस तरीके से कर रहे हो उसकी। तो जैसे आपने बोला ना कि ये मेरी क्लाउड एप्लीकेशन है, ये क्लाउड, ये प्राइवेट क्लाउड है, तो आप जब प्राइवेट क्लाउड की बात कर रहे हो, दिस मींस कि वो IP एड्रेसेस आपने अपने लिए रिजर्व किए हुए हैं एंड यू आर अलाउइंग ओनली योर यूजर्स टू यूज दिस एप्लीकेशन यूजिंग दिस पर्टिकुलर IP एड्रेसेस। ये बाहर की दुनिया के लिए नहीं है। अगर जाके मैं अभी यहाँ लिखूं कि dell.in/HR, तो उनका HR एप्लीकेशन मैं नहीं खोल पाऊंगा,
बट इफ आई एम अ डेल एम्प्लॉय देन आई विद इन द डेल आई कैन एक्सेस इट. तो वो उनके अपने इंटरनल एप्लीकेशन है. बट सेम वे आप ये जो जितनी भी ईमेल हम जो बात कर रहे हैं गूगल ड्राइव, आप gmail.com आप कहीं से भी क्लिक करोगे तो यू कैन ओपन दैट. तो वो उन्होंने पब्लिक डोमेन में अवेलेबल की हुई है. तो राघव, डज इट मेक एनी? हाँ जी सर. हाँ, तो बेसिकली ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद करना कि आईपी एड्रेस लेवल पे आपने कैसे कंट्रोल किया हुआ है इसका. इज इट योर डेडिकेटेड आईपी व्हिच इज रिजर्व्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, और इज इट काइंड ऑफ अ ओपन आईपी, पब्लिक आईपी. और जैसा मैंने बताया कि कम्युनिटी क्लाउड में आपका ये मैकेनिज्म होता है, इसमें आप मल्टीपल ग्रुप्स में आप पार्टीशन कर सकते हो एंड यू कैन कंट्रोल द पॉलिसीज एट द ग्रुप लेवल कि ये सिक्योरिटी मेरी इस ग्रुप के लिए ये होगी. और ये हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉलिसी में चेंज करोगे तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को आप नहीं बोल सकते जाके कि आप ये चेंज करो, ये चेंज करो. आप कितना भी कहोगे कोई नहीं करेगा. तो जनरली हम क्या करते हैं कि ग्रुप्स में क्रिएट कर देते हैं कि पब्लिक साइड में ये करेंगे, प्राइवेट के लिए ये करेंगे, लैब्स के लिए ये करेंगे. एंड फिर उन ग्रुप्स पर हमें जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, तो व्हेन आई एम सेइंग पॉलिसीज, उसके लिए एक्सएमएल कंस्ट्रक्ट होते हैं. आई वाज टॉकिंग अबाउट सैमल और एक्सेस ईएमएल, उस दिन मैं बता रहा था आपको. तो ये जो ना एक्सएमएल पॉलिसी मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं. तो यूजिंग दिस मार्कअप लैंग्वेजेस वी कैन पुट द सेट ऑफ पॉलिसीज ओवर ए ग्रुप कि इस ग्रुप को मैंने इस डोमेन में डिवाइड किया हुआ है और इस डोमेन के ऊपर ये पॉलिसीज रन करेंगे. तो कुछ पॉलिसीज तो सारे डोमेन्स पे रन करेंगी, कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज पर्टिकुलर डोमेन्स में भी आप मैनेज कर सकते हो. तो कम्युनिटी क्लाउड हो जाता है. ये कम्युनिटी में आपने कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ किया हुआ है एक्सेस एंड यू कैन कंट्रोल इट. हाइब्रिड क्लाउड जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. तो जनरली हमारे पास गेटवे सर्वर्स होते हैं. तो गेटवे सर्वर इज काइंड ऑफ अ ब्रोकर. इज अ लेयर बिटवीन प्राइवेट एंड द पब्लिक. तो पब्लिक साइड एप्लीकेशन जो है अपने वो एक अलग आईपी रेंज में एक नेटवर्क में नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन में सेट की हुई है, और प्राइवेट साइड एप्लीकेशंस आपने एक अलग नेटवर्किंग साइड में की हुई हैं. और गेटवे जो होता है वो दोनों के बीच में एक कनेक्टर की तरह से काम करता है. तो आप जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, तो बेसिकली हमने पहले एक ये इंडियन कैंसर सोसाइटी के लिए एक एप्लीकेशन बनाई थी. एंड डॉक्टर पंकज आपको याद होगा वो. तो उनका एक लैब का जो मॉड्यूल था वो उनके सेंटर में लगी हुई थी लैब की मशीन. तो वो क्या था कि टेक्स्ट फाइल्स में डाटा भेज रहा था लैब का, और हमने जो उनका जो ईएमआर सेट किया था वो क्लाउड में किया था. तो अब मान लो कि आपकी विंडो मशीन पर कोई टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है विच इज इन योर लोकल मशीन. अब उसको आपको भेजना है क्लाउड के ऊपर. सर्वर आपका क्लाउड के ऊपर है, जो LIS एप्लीकेशन है वो आपकी क्लाउड के ऊपर है, और जो एनालाइजर मशीन है जो लैब की वो आपके लोकल है, लोकल नेटवर्क में. तो कैसे भेजोगे उसको? अब अगर आप पूरे के पूरे नेटवर्क को उसके इंटरनेट से कनेक्ट कर दोगे तो प्रॉब्लम है ना. फिर तो आपका पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा इंटरनेट बन गया. वो तो नहीं करना. ICS की जो भी अपनी एप्लीकेशन रन कर रही है, लैब एनालाइजर मशीन है या जो भी उनकी कॉन्फ़िगरेशन है, वो तो इंटरनल है ना उनकी. तो जनरली हम क्या करते हैं कि तो जो हमने वे किया था वो ये था कि विंडो सर्विसेज के थ्रू हम लोग वो फाइल्स को पुश कर देते थे एक लोकेशन में, एंड वो लोकेशन हमने कॉन्फ़िगर की हुई थी अपाचे वेब सर्वर के अंदर. तो बेसिकली हम क्या करते थे कि जो लैब एनालाइजर मशीन का डाटा आता था उसको हम पुश कर देते थे टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर. और जो अपाचे सर्वर था, अपाचे सर्वर को हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ था कि दैट वाज टेकिंग द फाइल्स फ्रॉम दिस फोल्डर एंड यूजिंग ए वेब सर्विस इट वाज ट्रांसमिटिंग इट टू द क्लाउड. तो वो सारी फाइल्स का जो डाटा था क्लाउड पे चला जाता था. तो ये जो मैकेनिज्म था, तो ये एक तरह का मिनिएचर वर्जन था हाइब्रिड क्लाउड का, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ. तो मतलब बेसिकली एक गेटवे ना यूज करके हमने एक सिंपल अप्रोच यूज कर ली थी कि यहाँ आप विंडो से आप किसी लोकेशन में डाल दो, उस लोकेशन से आपकी जो वेब सर्विस होगी वो आगे भेज देगी उसको. तो दिस काइंड ऑफ थिंग आर द गेटवे अप्रोचेस. तो आपके जो प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि यू नीड टू सेंड द प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट्स. तो जो प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट आप सेंड करेंगे तो यू हैव टू आल्सो टेक केयर कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट make the entire services available over the internet. They will only allow certain services to be made available over the internet. जैसे आपको पेशेंट का डाटा भेजना है. अब हम बात कर रहे हैं HIE की, तो हम बोल रहे हैं कि प्रोवाइडर सिस्टम्स विल सेंड द डाटा टू द फिडुशियरी रिपोजिटरीज या PHR, या दे विल सेंड द E-ऑब्जेक्ट्स. तो ये सारे जो हैं इंटरनेट सर्विसेज हैं. बट जो बाकी जो सर्विसेज है उनकी रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट, बिलिंग, ये तो सब इंटरनल है.
तो वो ये जो इंटरनल सर्विसेज हैं ये प्राइवेट क्लाउड में कॉन्फ़िगर करेंगे और जो बाकी एक्सटर्नल सर्विसेज है ओवर द वेब सर्विसेज उसको यूज करेंगे. दे नीड अ गेटवे अप्रोच. गेटवे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो. तो इन सच सिनेरियोज वी ऑलवेज नीड अ गेटवे सर्वर. So basically, this I've already spoken about. Now, ये जो हम बात कर रहे थे डिफरेंट क्लाउड्स की, पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी और हाइब्रिड, तो ये सारे के सारे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स ऑफ द क्लाउड होते हैं. So this is one way of categorizing the clouds. The other way is basically the service model based categorization. So service model is like a reference model on which cloud computing is based. तो जनरली हमारे 3 सर्विस मॉडल्स होते हैं एंड these are the terms we most often use. Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि ओके, सो व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज प्लेटफॉर्म, व्हाट इज एप्लीकेशन. तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस टर्म्स. तो मान लो कि मेरे को एक HDIS सिस्टम हमने बनाया है, EMR एप्लीकेशन बनाई है. तो EMR एप्लीकेशन बनाने के बाद में फर्स्ट वी नीड सम काइंड ऑफ अ सर्वर टू होस्ट द एप्लीकेशन. तो हम बोलते हैं कि ये एप्लीकेशन है, इसमें एक वेब सर्वर चाहिए हमें बिकॉज मेरे पास रेस्ट सर्विसेज हैं, वो मेरी मोबाइल से एक्सेस होंगी या वेब ब्राउजर से एक्सेस होंगी. तो आई नीड ए वेब सर्वर. देन मेरा एप्लीकेशन का जो लॉजिक प्रोग्राम रन करेगा दैट विल बी ऑन द एप्लीकेशन सर्वर. और जो मेरा डाटाबेस होगा वो मेरे किसी डाटाबेस में स्टोर होगा विच तो आई नीड ए डाटाबेस सर्वर. तो नॉर्मल एप्लीकेशंस में वी हैव ए वेब सर्वर, वी हैव ए एप्लीकेशन सर्वर, वी हैव ए डाटाबेस सर्वर. लेकिन अल्टीमेटली इन सर्वर्स को होस्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? आई नीड ए सर्वर, आई नीड ए स्टोरेज एंड आई नीड ए नेटवर्किंग. ये 3 चीजें मुझे चाहिए. तो जब मैं सर्वर की बात करता हूँ तो चाहे तो मेरे को फिजिकली एक पूरा डब्बा, तो पुराने टाइम में क्या होता था, पूरा एक डब्बा खरीद के ले आते थे, एक पूरा कंप्यूटिंग नोड, उसको बोलते थे कि ये सर्वर आपका यूज होगा ये, या 2 एप्लीकेशन सर्वर ले आते थे. आजकल क्या होता है, वर्चुअल मशीन्स आ गई. विद इन द सर्वर यू कैन क्रिएट द मल्टीपल VMs, वर्चुअल मशीन्स. तो ऐसा भी कर सकते हो आप कि आपके पास विंडोज का लैपटॉप है, आपको लिनक्स का कोई मतलब कोई प्रोग्रामिंग आपको लिनक्स पे करनी है, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 2 डिफरेंट पार्टीशंस ऑन द मशीन यू कैन यूज अ VM, वर्चुअल मशीन. वर्चुअल मशीन का अपना इंटरनली एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है which can be different from your base host machine. तो host machine मेरी Windows है लेकिन VM जो है मेरा Linux पे वर्क कर रहा है and it has its own different IP. तो एक तरह से मशीन विद इन द मशीन में मल्टीपल मशीन्स क्रिएट कर सकता हूँ, पार्टीशंस कर सकता हूँ. फिर और इसका एक सिंपलर वर्जन आ गया, कंटेनर्स. तो कंटेनर्स में हम लोग बोलते हैं डॉकर इमेज फाइल्स या क्यूबरनोड्स विच इज अ क्लस्टर ऑफ डिफरेंट इमेज फाइल्स. तो ये सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्टेड पार्टीशंस हैं बेसिकली. तो ये फर्क जो होता है जनरली VM में और इसमें ये होता है कि VM क्या, जैसे मेरे पास 4 GB की मशीन है, उसमें से मैंने 2 GB का एक VM ले लिया, तो वो जो 2 GB होगा मेमोरी, वो स्पेसिफिकली VM खा जाएगा उसको, तो VM एलोकेट हो जाएगा उसको. तो VM अपना एक अलग से पार्टीशन बना देता है. इट्स नॉट शेयरिंग एनीथिंग विद द रेस्ट ऑफ द थिंग. डॉकर इमेजेस जो होती हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन रादर देन फिजिकल हार्डवेयर पार्टीशन. तो वो क्या होगा कि शेयर्ड कर्नल अप्रोच पे वर्क करता है कि जितने भी डिफरेंट, अब मैंने एक मशीन पे 4 डॉकर इमेज फाइल्स बना दी, तो चारों इमेज फाइल्स सारे रिसोर्सेज को यूज करेंगे जो भी मशीन पे अवेलेबल होंगे. सो these are the different ways I can host my server applications. तो जैसे हम माइक्रो सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो वी नीड डॉकर्स में जाके हम लोग होस्ट करते हैं. वेद हमेशा जो सबसे पहले डॉकर पढ़ाते हैं. तो वी नीड द सर्वर. फिर हम बोलते हैं कि अच्छा इसमें स्टोरेज हम कहाँ करेंगे, इसका डाटा कहाँ स्टोर होगा. तो उसके लिए आपने कोई डाटाबेस जैसे पोस्टग्रेस यूज किया, MySQL यूज किया, तो ये आप कहीं पे यूज करते हो. तो यू नीड द स्टोरेज. उसमें आप अपने सर्वर्स भी डालते हो, डाटाबेस भी डालते हो. देन यू नीड ए डाटाबेस सर्वर. तो जो आपने जहाँ पे अपना MySQL या पोस्टग्रेस इंस्टॉल किया होता है, दैट पर्टिकुलर मशीन इज योर डाटाबेस सर्वर. तो जनरली ये जो लेयर्स होती हैं आपकी हार्डवेयर वाली, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, दिस इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि हम अपनी एप्लीकेशन कहाँ डालेंगे.
नाउ ऑन टॉप ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जब मैं अपनी एप्लीकेशन डिजाइन करता हूँ तो बहुत सारे कंपोनेंट्स मुझे चाहिए होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मेरे को वेब एप्लीकेशन है तो मुझे कोई टॉमकैट चाहिए, इस अ वेब कंटेनर. टॉमकैट चाहिए या जेबॉस चाहिए या वाइल्ड फ्लाई चाहिए. तो ये डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर. फिर मेरे को डेटाबेस में पोस्टग्रेस या माईसीक्वल यूज किया. फिर अगर मेरी एप्लीकेशन मैसेजिंग पर डिपेंड कर रही है, जैसे हम माइक्रो सर्विसेज में अलग अलग माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं एंड दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर थ्रू मैसेजेस, तो हमारे को कोई मैसेजिंग क्यू चाहिए जैसे RabbitMQ या Kafka. तो ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये मेरी एप्लीकेशन को डिजाइन करने में, मतलब एप्लीकेशन को वर्क करने में हेल्प करते हैं. दीज आर नॉट इंफ्रा कंपोनेंट्स, दीज आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर इनेबलिंग माय एप्लीकेशन लॉजिक. इनको हम बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इनेबल्ड कंपोनेंट, प्लेटफॉर्म इनेबलर्स हैं ये. तो जो प्लेटफॉर्म होता है इट ऑफर मी ऑल द कंपोनेंट्स दैट सपोर्ट माय एप्लीकेशन एंड दिस इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अब तीसरा जो लेयर होता है वो मेरी एक्चुअल एप्लीकेशन होती है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है. तो जैसे मैंने उसमें लिखा कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, ये मेरा अपॉइंटमेंट मॉड्यूल है. नाउ ईच एप्लीकेशन आई हैव द डिफरेंट फंक्शनैलिटी एंड दिस डिफरेंट फंक्शनैलिटीज आई एम यूजिंग एज द सर्विसेज. तो रजिस्ट्रेशन में मेरे इतने फंक्शंस हैं. तो ये जो हम डिटेल डिजाइन कर रहे हैं माइक्रो सर्विसेज में, वी आर एक्चुअली वर्किंग दैट. तो सिमिलर वे जब क्लाउड पे आप सर्विस मॉडल की बात करते हो तो देयर आर सर्टेन क्लाउड वेंडर्स हु आर ओनली ऑफरिंग यू द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट. वो बोलते हैं कि अच्छा आपको अलग से डब्बा खरीदने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड ए सर्वर स्टोरेज और इन नेटवर्किंग वी विल मैनेज इट. तो ये सब मैनेज सर्विस कॉन्सेप्ट. तो बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ बाइंग योर ओन सर्वर you can host your application on our server. So we will take care of all the server management, server configuration या container management, ये सब हम केयर करेंगे. इस तरह से डाटाबेस आपको जो बनाना है वो हमारे स्टोरेज पे बना लो. एंड नेटवर्किंग का पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है उनका सेट होता है, तो काइंड ऑफ वो पूरा डाटा सेंटर होस्ट करते हैं. तो अगर कोई सॉफ्ट क्लाउड वेंडर ओनली इंफ्रा पार्ट को कंट्रोल करता है विच इज द सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. तो इसमें आपके फिजिकल मशीन, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज ये सब आ जाती है. एंड नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग इट? एडवांटेज ये होता है कि ऑल दिस क्लाउड वर्क्स ऑन पे पर यूज मॉडल एंड दिस इज ओपेक्स मॉडल रेदर देन कैपेक्स मॉडल. तो पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, तो आईटी बजटिंग जब करते थे तो वी विल ऑलवेज एलोकेटिंग सम बजट फॉर बाइंग ऑल दिस थिंग. कितने सर्वर्स चाहिए, इतने स्टोरेज चाहिए, नेटवर्किंग करना है, डाटा सेंटर बनाना है, आईटी रूम बनाना है, ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता था. तो वो सारा आपको खुद परचेज करना पड़ेगा, उसको मेंटेन खुद करना पड़ेगा. तो टीम भी चाहिए होती थी जो पूरा मेंटेन करती थी. आजकल क्या होता है कि एप्लीकेशन बनाया और एप्लीकेशन को क्लाउड पे डाल दिया. नाउ आई एम नॉट वरिंग अबाउट कि मेरा स्टोरेज कैसे मैनेज हो रहा है, नेटवर्किंग कैसे मैनेज हो रहा है. तो मैंने अपना सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कर दिया उसमें. रेस्ट एवरीथिंग दे आर मैनेजिंग, लोड बैलेंसिंग ये सब वो अपने आप करते हैं. सो जनरली ये जो एनवायरनमेंट्स होते हैं मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग द एप्लीकेशंस. अब मैंने अपनी एप्लीकेशन क्लाउड में डाली, ऐसे ही बहुत सारे डेवलपर्स ने अपनी अपनी एप्लीकेशन क्लाउड में डाली हुई है. तो ईच एप्लीकेशन विल रन विद इन देयर ओन कॉन्टेक्स्ट, अपने अकाउंट में वर्क करेगी ना उनके, तो उसको हम बोलते हैं टीनेंट. तो दीज आर मल्टी टेनेंट एप्लीकेशंस एंड दे आल्सो ऑफर द मैनेज सर्विसेज. तो अगर वो बोलते हैं कि ठीक है आपके पास आईटी टीम नहीं है तो आप मैनेज सर्विसेज परचेज कर लो, तो एट एक्स्ट्रा कॉस्ट दे कैन डू द बैकअप ऑफ आवर सर्विसेज, दे कैन मॉनिटर ऑल दिस सर्विसेज. अगर कोई फेलियर होता है उसके अंदर तो ऑटोमेटिकली दे विल रिपेयर इट. तो उसको हम बोलते हैं कि मैनेज सर्विसेज. जैसे वारंटी के अंदर हम बोलते हैं ना कि मैनेज सर्विस है, वारंटी पीरियड में अगर कुछ डिफेक्ट होता है तो दे विल टेक केयर. तो ऑल दिस थिंग वी काइंड ऑफ लीव टू देम एंड वी पे अ मंथली बिल फॉर दिस. तो इंफ्रा वाले ओनली इंफ्रा पार्ट को हैंडल करते हैं. तो ये कुछ कंपनीज थी इनिशियली व्हिच केम एंड व्हिच वर डूइंग AT&T, टेरामार्क, एनटीटी, ये सब शुरू में जो थे ये सब IaaS प्रोवाइड करते थे, ओनली इंफ्रा वाले पार्ट को प्रोवाइड करते थे. देन केम द कॉन्सेप्ट एंड क्लाउड वेंडर्स थॉट कि इंफ्रा के साथ साथ अगर हम प्लेटफॉर्म सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, मतलब ऑल द फैसिलिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ बिल्डिंग एंड डिलीवरिंग द एप्लीकेशंस. तो बिल्डिंग द एप्लीकेशंस में आपको डेवऑप्स कंपोनेंट्स भी चाहिए होते हैं बहुत सारे. तो डेवऑप्स में आपको you need the container management services,
आपको अकाउंट्स कोड रिपोजिटरीज अपनी मेंटेन करनी पड़ेंगी. देन यू नीड द इंटीग्रेशन टूल्स कि आप जैसे डेवलपर अपना कोड चेक इन कर सके, कमिट कर सके. देन यू नीड द टेस्टिंग इन्वायरमेंट. तो ये सारी सर्विसेज. एंड देन जैसे मैंने बताया कि यू नीड द डाटाबेस सर्विस, यू नीड द मैसेजिंग क्यू सर्विस. ये सब आपको एप्लीकेशन डिजाइन करने में, आपके एप्लीकेशन को रन करने में सपोर्ट करती है. तो ये जो भी रन टाइम इन्वायरमेंट है, इफ सम क्लाउड वेंडर इज ऑफरिंग यू ऑल दीज सर्विसेज आल्सो ओवर एंड अबव द इंफ्रा पार्ट, तो उसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एक पर्टिकुलर, मतलब आप प्लेटफॉर्म को अगर आपने माइंड में रखा हुआ, जैसे आपने बोला मुझे एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, अब उसके लिए मेरे को ये चीजें चाहिए. तो फॉर एग्जांपल मेरे को डेवऑप्स इस तरह से सेट करना है, मुझे डॉकर इमेजेस फाइल बनानी है, एंड देन यू नो आई नीड दिस पर्टिकुलर गिटहब कोड रिपोजिटरी, आई नीड जीरा फॉर द कंप्लीट मैनेजमेंट, और मेरे को ये टेस्टिंग टूल जेंकिन यूज करना है. फिर मैंने बोला कि इसमें मेरे को RabbitMQ चाहिए मैसेजिंग क्यू के लिए, पोस्टग्रेस चाहिए डाटाबेस के लिए. तो ये सारे कंपोनेंट खुद इंस्टॉल करने की जगह मैं क्लाउड सर्विसेज भी यूज कर सकता हूँ. तो क्लाउड इज ऑफरिंग मी ऑल दिस मैनेज सर्विसेज. सो इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग माय ओन पोस्टग्रेस या MySQL, आई कैन यूज MySQL एज ए सर्विस. वो AWS प्रोवाइड करता है. तो जो डिफरेंट क्लाउड वेंडर्स प्लेटफॉर्म इनेबलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. अब इन सर्विसेज को यूज करके आई कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन. सो जनरली जो Amazon आप बात करते हो, Amazon वेब सर्विस, AWS या Azure या Rackspace, ये PaaS की कैटेगरी में आते हैं ना, कि IaaS की कैटेगरी में आते हैं. क्योंकि आज के टाइम में AWS में मेरे पास मैसेजिंग क्यू भी मिल जाएगा, Kafka भी मिल जाएगा, एनालिटिक्स सर्विसेज भी मिल जाएंगी, मोबाइल एनालिटिक्स भी मिल जाएगा, डाटा वेयर हाउसिंग मुझे करनी है तो वो भी पूरे फीचर मुझे मिल जाएगा. सो इट इज नॉट जस्ट कि डब्बा मेरे को मतलब कि स्टोरेज दे देंगे या नेटवर्क देंगे. जनरली वी थिंक लाइक दैट ओनली, बट इट इज ऑफरिंग मी द मैनेज सर्विसेज आल्सो, बट इट कम्स एट ए कॉस्ट. तो मेरे पास ऑप्शन है कि चाहे मैं अपने कंपोनेंट इंस्टॉल करूं या मैं उनकी सर्विसेज को यूज करूं. सो राघव और एनीबॉडी इन द एनालिस्ट टीम, एनी डाउट हियर? इज इट कि प्लेटफॉर्म सर्विस क्या होती है और इंफ्रा क्या होती है? यस सर. सर हाँ जी. कितना कॉस्ट लगता है सर? मतलब अगर हमें एक Amazon वेब सर्विसेज पे हमें प्लेटफॉर्म सर्विसेज यूज करनी है. देखो, जब आप Amazon में अकाउंट खोलते हो ना, तो कुछ फिक्स आवर्स आपको फ्री देते हैं. इनिशियल अगर फर्स्ट टाइम यूजर होंगे ना, तो आपको 750 आवर्स, या आपको कहेगा कि इतने यूजर्स, इतने साइज ऑफ डाटा तक आपका फ्री होगा. उसके बाद में इसके बियॉन्ड जब आपका इंक्रीज होना शुरू होता है, या वो कई बार थ्रेशोल्ड डिफाइन कर देते हैं कि इतने GB तक का डाटा आपका इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक जो है वो फ्री होगा. इसके ऊपर जो होगा वो आपका चार्ज लेना शुरू कर देते हैं. कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि 1000 GB, जस्ट एन एग्जांपल, 1000 GB तक आपका फ्री है. 1000 GB के बाद जब आपका नेटवर्क में डाटा फ्लो होगा, तो उसके बाद में पर GB डाटा आपका $0.3 या समथिंग पे होगा. दिस इज ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल. तो ये सारा ना उनकी वेबसाइट पे मेंशन होता है. आप जब AWS में अकाउंट बनाओगे तो पूरा पढ़ सकते हो उसके अंदर कि कितना फ्री टायर में कितना मिलता है. फिर हर एक मैनेज सर्विस को यूज करना है तो उसमें मेरे को कितना पे करना पड़ेगा. तो अगर मैं उनकी SQS सर्विस यूज करता हूँ, सॉफ्टवेयर एज ए क्यू सर्विस, रेदर देन मैं अपना RabbitMQ यूज करके, तो वो मेरे को इतने मिलियन अलाउ करता है ऑब्जेक्ट्स एट ए फ्री रेंज. उसके बियॉन्ड इसका $0.1 पर समथिंग उसका बिल बनना शुरू हो जाता है. तो उसको हम बोलते हैं पे पर यूज, कि यहाँ तक आपका फ्री होगा, यहाँ के बाद आपका पेमेंट. मैनेज सर्विसेज जितनी भी होती हैं वो सारी पेड होती हैं. मैनेज सर्विस का मतलब है कि नाउ यू आर लीविंग एवरीथिंग टू देयर टीम, एंड वो आपको पेड सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे. अगर कुछ फेलियर होगा तो उनकी L1, L2, L3 टीम होती है, वो मैनेज करती है उसको. सो बाय द वे, आर यू अवेयर ऑफ L1, L2, L3 कॉन्सेप्ट? राघव? ओके. सो जनरली कभी भी अब आप अपने IHMR का एग्जांपल लीजिए कि IHMR में जैसे आपका कोई भी प्रॉब्लम होता था, जैसे आपका पर्टिकुलर नेटवर्क नहीं रन कर रहा, या कुछ स्टोरेज आप कहीं करते होंगे वो नहीं मिल रही, एक्सेस हो रही, तो क्या क्या करते थे आप पहले? तो IT वालों को हाँ जी, आप IT वालों को बोलते थे. यानी अब सेम केस अगर हॉस्पिटल में आपने एक एप्लीकेशन रन करा रहे हैं,
और किसी डॉक्टर को कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल वो यूज कर रहा है और उसको उस मॉड्यूल को यूज करने में एक्सेस नहीं कर पा रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है बट मेरे को तो यहाँ तक भी था कि एक बार फोर्टिस में तो शुरू में जब मैं इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो एक बंदे ने, डॉक्टर ने, ही वॉज अ सीनियर डॉक्टर, उसने नीचे से लैपटॉप का बटन ही ऑन नहीं किया हुआ था, वो जहाँ पे पावर का बटन होता है, और वो शोर मचा रहा सुबह से कि चल नहीं रहा, टेक लीड को बुलाओ, उसका एप्लीकेशन नहीं रन कर रही, फलाना नहीं कर रही। जाके देखा तो उसका पावर बटन ही नहीं ऑन था, कंप्यूटर ही ऑन नहीं था। तो काइंड ऑफ जो एंड यूजर होता है वो बहुत कभी कभी बहुत सिंपल भी मिल जाते हैं कि जिनको कुछ नहीं पता होता कंप्यूटर से। तो जो भी पहली लाइन ऑफ रिपोर्टिंग होती है, तो फर्स्ट लेवल पे आप किसी को भी मतलब रिपोर्ट करोगे तो कॉल सेंटर लाइक फंक्शनैलिटी, एक बंदा बैठा होगा जिसको जो आपके इंसिडेंट को रिपोर्ट कर लेगा। अगर कोई सिंपल केस होगा तो आपको गाइड कर देगा कि अच्छा ये कर लो सर, आप ये बटन चेक कर लो, ये थोड़े थोड़े उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जो नॉन प्रोग्रामिंग एफर्ट होगा तो सिंपल आपके कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हैं वो आपको बता देगा। जैसे आपका कभी भी आपने देखा होगा आपका राउटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मोडेम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप एयरटेल को कॉल करते हो तो जो पहले सर्विस पॉइंट जो होती है उनके एग्जीक्यूटिव्स जो बैठे होते हैं जो आपकी कॉल लेते हैं L1 सर्विसेज, वो कुछ आपको बोलेंगे अच्छा आप रीबूट करके देख लो सर, ये करके देख लो, वो करके देख लो। तो उनसे हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करते हैं कि एस्केलेट कर देते हैं इस इंसिडेंट को टू द नेक्स्ट लेवल विच इज द L2 लेवल 2, एंड दिस इज द इंसिडेंट मैनेजमेंट थिंग। तो लेवल 2 में क्या होता है कि लेवल 2 में जनरली डेवलपर्स या इंजीनियर्स सॉर्ट ऑफ पीपल होते हैं who know the kind of more detailed architecture of the application design। तो अगर कोई कोड लेवल प्रॉब्लम आ रही है, ये जो प्रॉब्लम है कोड की वजह से है, कहीं पे कोड में कोई प्रॉब्लम है, और या कोई पर्टिकुलर जैसे क्यू है, मान लो मैसेज क्यू है, वो मैसेज क्यू आपकी रन नहीं कर पा रही है, तो सारे मैसेजेस आपके बंद हो गए हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा दो सर्विसेज के बीच में, तो ये सारी चीजें L1 वाला बंदा नहीं कर पाएगा। तो देन L2 टीम इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उनका एक अलग टाइम विंडो होता है उसको रिजॉल्व करने का। तो जनरली वो कोई कोडिंग चेंज करेंगे, कुछ पैच करेंगे या कुछ डाटाबेस में चेंज करेंगे एंड दे एड्रेस इट। और तीसरी जो टीम होती है विच इज L3, वो जनरली प्रॉब्लम मैनेजमेंट साइड में आती है कि अगर आपके पास सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन आ रही है तो दे डू अ रूट कॉज एनालिसिस ऑफ दैट। तो या तो आपको कोई इनहेंसमेंट करना पड़ेगा एप्लीकेशन में, या आपको कोई रीफैक्टरिंग या रीचेंज करना पड़ेगा आपको मॉड्यूल के डिजाइन में, बार बार ये दिक्कत आ रही है, तो देन दे काइंड ऑफ रीस्ट्रक्चर द थिंग्स विच इज द कोर डेवलपमेंट टीम। तो वो आपकी L3 टीम होती है। एंड L3 वाली जो होती है आपके इंसिडेंट्स के लिए नहीं होती, जनरली प्रॉब्लम्स के लिए होती है। तो वो आपकी डे टू डे जो रिपोर्टिंग है, अगर सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं देन दे डू द रूट कॉज एनालिसिस एंड दे काइंड ऑफ एड्रेस द प्रॉब्लम फ्रॉम द कोर डिजाइन। एंड उसमें आपके सीजन्ड आर्किटेक्ट्स एंड डेवलपर्स ये सब होते हैं। तो दिस इज द L3 पार्ट। तो इसी तरीके से जो क्लाउड वेंडर्स होते हैं उनकी भी L1, L2, L3 टीम होती है। L1 टीम होगी, आपको कोई प्रॉब्लम आई AWS में, आपने अकाउंट खोला, अगर तो आपने मैनेज सर्विस नहीं ली होगी तो दे आर नॉट बॉदरिंग, आपने अकाउंट लिया, आप खुद देखो आपकी प्रॉब्लम है। आपने मैनेज सर्विस सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, यू आर पेइंग सम एक्स्ट्रा मनी टू देम, आपकी आईपी एड्रेस, आपका आईपी एक्सेस नहीं हो पा रहा, आपकी एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो रही, कुछ इशू आ रहा है, आपका बैकअप जो है वो बंद हो गया, हर रात को आपका बैकअप चलता था, वो पिछली रात की बैकअप नहीं रन हुआ, तो यू विल मेक अ कॉल टू देयर टीम मेंबर। जो टीम का मेंबर आपका कॉल पिक करेगा, ही इज द L1 टीम मेंबर, देन ही विल चेक द प्रॉब्लम कि कुछ आपका सिंपल कॉन्फ़िगरेशन से हैंडल हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ, देन ही विल पास ऑन टू हिज इंजीनियरिंग टीम, देन दे विल सॉल्व समथिंग फ्रॉम देयर बैकएंड। जो उनकी एप्लीकेशन मैनेज कर रहे हैं, अगर कुछ कोड लेवल पे प्रॉब्लम है, दे विल हैंडल इट। और अगर उनसे भी नहीं होता, कोई लॉन्ग टर्म कोड चेंज करना पड़ेगा या एनहांसमेंट करना पड़ेगा, तो उनकी L3 टीम। तो जनरली L1 इज ट्रांसपेरेंट टू अस, L2 एंड L3 इज इनसाइड देयर। तो ये L1 L2 वाला L3 वाला कॉन्सेप्ट याद करना। और ये जनरली मैनेज सर्विसेज के साथ ही मिलता है। तो मैनेज सर्विसेज जितने भी सॉफ्टवेयर क्लाउड वेंडर्स होते हैं, दे प्रोवाइड मैनेज सर्विसेज आल्सो एट ए एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फी। अगर आप मैनेज सर्विस नहीं ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ उनका स्टोरेज, सर्वर ये सब यूज कर सकते हो, बट देन यू हैव टू मैनेज द थिंग्स बाय योर ओन। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग कि एप्लीकेशन रन कर रही है, कोई स्टॉप नहीं हो रहा है। अगर कोई सर्विस डाउन हो गई तो वो टीम में से किसी को फिर जाके चेक करना पड़ेगा और ओपन करना पड़ेगा। The third type is basically software as a service. Now this is the simplest case. Now let us take the Practo example. Practo ने एप्लीकेशन बनाई HIS की,
वो जनरली डॉक्टर्स को बोलते हैं कि 1000 रुपीज पे करो, हम आपको ये फीचर देंगे मंथली 1000 रुपीज में. तो दे आर नॉट एक्चुअली इंस्टॉलिंग एनीथिंग एट द क्लिनिक लेवल. दे हैव होस्टेड देयर एप्लीकेशन इन द क्लाउड. उसमें वो क्या होता है कि कोई भी डॉक्टर होता है, जैसे वो प्रैक्टो की सर्विस यूज करना चाहता है तो वो उसका अकाउंट ओपन कर देते हैं एंड उसके सब्सक्रिप्शन मॉडल पे कि वो कितना, मतलब उसने ये सर्विसेज मांगी है, वो अपॉइंटमेंट चाहिए, उसको कंप्लीट EMR चाहिए, तो उसके लिए एक डिफरेंट मॉडल होगा. किसी को सिर्फ अपॉइंटमेंट सर्विस चाहिए एंड बिलिंग सर्विस चाहिए, तो उसके लिए एक डिफरेंट बिलिंग मॉडल होगा. तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या सब्सक्रिप्शन मॉडल है, दे अलाउ द सेट ऑफ सर्विसेज टू बी यूज बाय दैट यूजर. तो यहाँ पर कंप्लीट सॉफ्टवेयर को आप एज ए सर्विस ऑफर कर रहे हो. तो यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर वेंडर्स आ जाते हैं. तो दिस इज मल्टी टेनेंट एक्सेस. एंड मल्टी टेनेंसी में इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है. तो कंप्लीटली ये मल्टी टेनेंट होता है क्योंकि आपको एक सिंगल यूजर के लिए तो आप बनाओगे नहीं, आपके तो मल्टीपल यूजर्स में ऐड होते रहेंगे, तो हर एक यूजर का अपना डाटा होगा. डाटाबेस के अंदर आपको पार्टीशन करना पड़ेगा बाय द मल्टी टेनेंट की. एंड कई बार एडवांस एप्लीकेशन में आपको होगा कि मेरे एप्लीकेशन में आपको मेरा ये नहीं कि पर्टिकुलर प्रोसेस में चेंज, ये चेंजेस मुझे चाहिए, व्हिच अदर यूजर्स आर नॉट आस्किंग फॉर. तो दैट इज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर यू आर यूजिंग. और दूसरा आपको बिलिंग एंड मीटरिंग करना है उसके अंदर, कि आपको पर पे मॉडल में यूज करना है. तो किसने कितना, कौन सा मॉड्यूल यूज किया है, कितनी सर्विसेज को यूज किया है, यू हैव टू कैलकुलेट द यूसेज एंड यू हैव टू क्रिएट अ मंथली बिल फॉर देम. तो जैसे मान लो आपने कहा अपॉइंटमेंट सर्विस, तो कितनी अपॉइंटमेंट्स मंथली उसने आपके सॉफ्टवेयर को यूज करके की है, देन यू आर क्रिएटिंग अ बिल बेस्ड ऑन दैट. तो ये सारे प्रोविजन से होते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पे आते हैं. तो टिपिकली IaaS वाला कॉन्सेप्ट अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि वी आर नॉट गोइंग विद द कंपनीज हु आर ओनली प्रोवाइडिंग इंफ्रा. वी आर नाउअडेज यूजिंग द PaaS मॉडल, क्योंकि हम AWS या Azure वगैरह यूज करते हैं, तो वो क्लाउड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं प्लस प्लेटफॉर्म सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. And software as a service, normally software vendors, जो हमारे SCA members हैं, they all kind of working on the SaaS model. So, anyone in the analyst team, any doubt, any question? No. तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा मुझे ये वाला क्लाउड इंस्टॉल करना है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह का सर्विस मॉडल एप्रोप्रिएट होगा और किस तरह के डिप्लॉयमेंट मॉडल में उस क्लाउड को आपको चाहिए. एटलीस्ट इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि ये पब्लिक क्लाउड के लिए है या प्राइवेट क्लाउड के लिए है. अगर हम कम्युनिटी क्लाउड की बात करते हैं तो क्या होता है कम्युनिटी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, और अगर हम बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. अब एज्योर का अगर कोई बंदा आपके पास आएगा एज्योर का, वो तो सारा सेल करने की कोशिश करेगा, इज अ सेल्समैन. वो आपको बोलेगा पूरी मैनेज सर्विस भी ले लो सर, सारी सर्विसेज हमसे ले लो. यू शुड बी काइंड ऑफ डूइंग अ कैलकुलेशन इन द माइंड कि कितनी सर्विसेज बेटर रहेंगी उनसे खरीदने में, उनसे यूज करने में. जहाँ भी आपको लगता है कि ओवरहेड ज्यादा है, मैनेजमेंट ज्यादा है, उसका हेडेक है, मतलब यू नीड टू कीप अ बिगर टीम टू मैनेज इट, वो सारी मैनेज सर्विस लेने में फायदा है. अगर कोई सिंपल सर्विस है जिसमें ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, तो दैट थिंग द इंटरनल डेवलपमेंट टीम कैन हैंडल. तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड कि कौन से क्लाउड वेंडर के पास जाना है, कौन सी सर्विसेज को किस मॉडल में परचेज करना है. तो एटलीस्ट दैट काइंड ऑफ नॉलेज यू शुड हैव. सो इफ यू आर यूजिंग द क्लाउड, तो आई थिंक वी ऑल आर यूजिंग द क्लाउड. यूट्यूब आप यूज करते हो, क्लाउड पे है. ड्रॉपबॉक्स आप यूज करते हो, वो क्लाउड पे है. गूगल आप यूज करते हो, किंडल, एवरीथिंग, ट्विटर, Facebook, these are all cloud applications. So going forward, NDHB clearly says कि you should have the cloud first strategy. तो उनका clear approach है कि application should be accessible, should be deployed over the cloud. तो cost भी आपकी save करती है, management भी easy होता है. Government side applications, they want state level की जो applications है, they want on the community clouds. Some places you can use a hybrid cloud model. Particularly जो प्राइवेट सेक्टर की एप्लीकेशन है, दैट विल कम ऑन द हाइब्रिड क्लाउड मॉडल. एंड प्योरली क्लाउड वाला कॉन्सेप्ट तो अब नहीं, प्योरली प्राइवेट वाला तो अब नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब क्योंकि डाटा एक्सचेंज आ गया है, तो आपको कुछ ना कुछ तो अपने सर्वर में ओपन करना पड़ेगा. तो इसलिए गोइंग फॉरवर्ड जो प्योरली ट्रेडिशनल क्लाउड था, प्राइवेट क्लाउड, कि अपोलो हॉस्पिटल तो अपना ओपन ही नहीं करेगा सर्वर का कुछ भी सर्विस, जो भी अवेलेबल हो सिर्फ अपोलो के डॉक्टर्स के लिए, तो वो नहीं होने वाला.
क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड PHR आएगा, पेशेंट कैन आस्क हिज डाटा, तो अपोलो हॉस्पिटल को शेयर करना ही पड़ेगा पेशेंट का डाटा PHR को. सो गोइंग फॉरवर्ड everything will come either in hybrid cloud or in the community cloud. पब्लिक क्लाउड में हेल्थ एप्लीकेशन नहीं डाल सकते क्योंकि पब्लिक क्लाउड में सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आ जाती हैं. तो वी कैन नॉट यूज, कुछ कर सकते हो आप, जैसे जन आरोग्य सेतु, ये जन आरोग्य ऐप जो बनाई है, तो कुछ एप्लीकेशन आप कर सकते हो ट्राई, बट सिंस पेशेंट डाटा इज सेंसिटिव डाटा, यू कैन नॉट पुट एवरीथिंग ऑन द पब्लिक क्लाउड पर से. So now I'm going to talk about the technology stack a little bit. कि क्या आप डिप्लॉय करते हो जब क्लाउड यूज करते हो. तो अगर मुझे अमेजन में क्लाउड बनाना है मान लीजिए, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आएगी कि अब जैसे ट्रेडिशनली होता है कि मैंने एक एप्लीकेशन बना ली, इसे मैं डिप्लॉय कहाँ करूँगा. तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक सर्वर. नॉर्मल थिंग में जब आप सोचते हो तो आपको एक लैपटॉप चाहिए होता है, लैपटॉप में आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो. सिंपल डेवलपर की मशीन में आपने एक एप्लीकेशन बना दी, एप्लीकेशन सर्वर डाल दिया, उसका एक डाटाबेस इंस्टॉल कर दिया, एक्लिप्स डाल दिया, वहाँ पे उसकी प्रोग्रामिंग कर दी. लेकिन जब आप इसको डिप्लॉय करोगे तो यू नीड ए सर्वर, बिकॉज सो मेनी अदर यूजर्स आर एक्सेसिंग द एप्लीकेशन. तो एक लैपटॉप पे डाल के तो चलेगा नहीं, क्योंकि लैपटॉप की कंप्यूटिंग रिसोर्स होती नहीं ज़्यादा. तो बेसिकली यू नीड ए क्लस्टर मॉडल. आपको अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है. अब जनरली हम एक वर्ड यूज करते हैं स्केलेबिलिटी, कि योर एप्लीकेशन शुड बी स्केलेबल. तो कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज स्केलेबिलिटी? राघव सुना ही ना स्केलेबिलिटी? हाँ जी सुना तो है. स्केलेबिलिटी इन द सेंस कि अगर ज्यादा ट्रैफिक आए तो वो भी मैनेज कर पाए. राइट. तो ये कैसे पॉसिबल होगा? मान लो कि आपने अपने एक कहीं पे एक मशीन या एक बॉक्स लिया और आपने उसमें अपनी एप्लीकेशन डाल दी. तो नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती थी कि पहले क्या होता था कि हार्डवेयर साइजिंग करते थे. अच्छा ये एप्लीकेशन है, लैब की एप्लीकेशन है, अप्रॉक्सीमेटली कितने यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं. तो उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा एट ए टाइम 1000 यूजर्स लॉग इन होंगे, उसमें से लेट अस से 100 कॉन्करेंट यूजर होंगे. तो एक वर्ड यूज होता था कॉन्करेंट यूजर. ना कॉन्करेंसी का मतलब होता है कि एट द सेम टाइम हाउ मेनी यूजर्स विल बी एक्सेसिंग द एप्लीकेशन. लॉग्ड इन यूजर का मतलब होता है कि कितने यूजर लॉग इन एप्लीकेशन के. तो लॉग इन यूजर और कॉन्करेंसी यूजर जरूरी नहीं है कि सेम होगा. आपने एप्लीकेशन लॉग कर ली, आपकी एप्लीकेशन ओपन है, अभी आप वो फॉर्म के अंदर कोई डाटा एंटर कर रहे हो, लेकिन अभी आपने सबमिट बटन क्लिक नहीं किया है. तो जब तक आपने फॉर्म को पूरा कंप्लीट फिल करके सबमिट बटन नहीं क्लिक किया है, तब तक आपका सर्वर के साथ तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा ना. अगर आपकी मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में डाल रहे हो, क्लाइंट साइड में अपना डाटा एंटर कर रहे हो, तो आप एप्लीकेशन में लॉग्ड इन हो, लेकिन आप एक्चुअली में यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग ऑन द सर्वर साइड. बट कॉन्करेंट यूजर वो होता है कि जैसे आपने सबमिट किया, अब जब आपने सबमिट किया तो आपका फॉर्म का जो डाटा होगा वो सारा जो है सर्वर में जाएगा. फिर उधर आपके जो मॉड्यूल्स आपने बनाए हुए हैं तो दे विल प्रोसेस दैट डाटा एंड स्टोर इट इन द डाटाबेस. तो ये जो पूरी प्रोसेसिंग हो रही है, अब जैसे आपने सबमिट किया तो किसी और ने भी सबमिट किया होगा. अब हेल्थ वर्कर के लिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, तो एट ए टाइम कितने सारे वर्कर्स होंगे जो सेम टाइम में सबमिट कर रहे होंगे डाटा, या सेम टाइम में रीड कर रहे होंगे. तो जो भी सेम टाइम में कुछ ना कुछ कर रहा है सर्वर के साथ, वो कॉन्करेंसी में आता है, कॉन्करेंट यूजर्स में आता है. तो जनरली रूल ऑफ थंब होता है कि 10% ऑफ द लॉग्ड इन यूजर आर टेकन एज द कॉन्करेंट यूजर. तो अगर मैंने कोई एप्लीकेशन 1000 यूजर के लिए बनाई, 1000 यूजर्स के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 कॉन्करेंट यूजर्स हो. तो उसके हिसाब से मैंने डिसाइड कर लिया कि अच्छा वेब सर्वर मेरे को 1 चाहिए या 2 चाहिए, एप्लीकेशन सर्वर मेरे को कितनी रैम चाहिए, कितनी मेमोरी, मतलब रैम इज द मेमोरी. आप भी जनरली जब आपने लैपटॉप खरीदा था तो यू आर गिविंग ना कि मुझे 8 GB का चाहिए लैपटॉप, या मेरे को 10 GB का चाहिए, कि मुझे प्रोग्रामिंग करनी है तो 16 GB का चाहिए. तो यू नीड मेमोरी, यू नीड CPU. तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करते थे कि डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स कितने यूजर्स इसको एक्सेस करेंगे. तो ये प्री कैलकुलेटेड होता था. अब क्या होगा कि उसमें थोड़ा प्रोविजन हम रखते थे एक्स्ट्रा कि भाई ठीक है 100 की जगह मैक्सिमम लेट से 300 भी हो सकते हैं. तो 3 टाइम्स करके उसको थोड़ा कैलकुलेट करके एडवांस में उतना एक सर्वर खरीद लिया.
अब सपोज करो कि एप्लीकेशन यूज होने लगी, नाउ यूजर लोड बढ़ गया, एप्लीकेशन पॉपुलर हो गई, 300 की जगह 500 यूजर्स का लोड आने लग गया उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे? हम नॉर्मल जो पहले वे होता था थिंकिंग का कि उसको स्केल करते थे, अब इसको स्केल करना पड़ेगा क्योंकि अब 500 यूजर्स का लोड हो गया है, तो ये जो पहले हमने जो हार्डवेयर खरीदा था, जो डिजाइन किया था, अब ये हैंडल नहीं कर पा रहा उसको। तो देयर वर टू काइंड ऑफ वेज कि जिसमें स्केलेबिलिटी को बढ़ाते थे, एक तो था वर्टिकल स्केलिंग, एक था हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो वर्टिकल स्केलिंग में तो ये होता था कि अच्छा एक ही बॉक्स है, एक ही बॉक्स में आपने रिसोर्सेज को ऐड कर दिया, तो उसको कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। ये थोड़ा याद रखना है अपने माइंड में कि आप मेरे पास नॉर्मली आप कभी भी जब हार्डवेयर खरीदते हो तो उसमें कुछ एम्प्टी स्लॉट्स होते हैं। जैसे आप अपने ये लैपटॉप का एग्जांपल लोगे तो इसके अंदर रैम के 2 स्लॉट होंगे कम से कम। अगर आपकी 16 GB है तो आपके पास 8 GB के 2 स्लॉट, आप 16 कर सकते हो, या 16 32 भी कर सकते हो उसको। वो डिपेंड करता है, वो आपकी मशीन की स्पेसिफिकेशन में भी मेंशन होता है कि कितने मतलब एक्सपेंडिबल, कितने तक एक्सपेंडिबल होता है। आपने फोन खरीदते हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि आपका इनिशियल स्टोरेज इतना है लेकिन एक्सपेंडिबल अप टू इतना है, तो उसके लिए वो अलग से एक स्लॉट आता है, मेमोरी स्लॉट की तरह होता है, तो उसमें आप अपना ऐड करके एक्स्ट्रा स्टोरेज बढ़ा सकते हो उसके अंदर। तो ये होता है वर्टिकल स्केलेबिलिटी। तो आपने उसके अंदर CPU बढ़ा दिया, प्रोसेसर का मतलब एक बेटर प्रोसेसर लगा दिया उसमें, या यू इंक्रीज द रैम मेमोरी, या नेटवर्क कार्ड आपने थोड़ा हाई पावर का खरीद ले लिया। दूसरी तरह का होता था कि अब आपका एक मशीन में बढ़ाते बढ़ाते तो लिमिट है ना, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द बॉक्स जितनी होगी उससे बियॉन्ड तो नहीं बढ़ा सकते। देन सेकंड वे वाज कि आप एक बॉक्स की जगह आप 2 बॉक्स यूज करने लगो। आपके पास पहले एक एप्लीकेशन सर्वर था, एक वेब सर्वर था, अब आपने 2 वेब सर्वर, 2 एप्लीकेशन सर्वर यूज कर लिए। तो फिर आपको लोड बैलेंसर चाहिए कि आपके पास जो भी रिक्वेस्ट यूजर से आ रही है वो आपकी इवनली मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों सर्वर्स के अंदर। ये नहीं कि एक ही सर्वर पे सारा कुछ आता रहे, दूसरा खाली बैठा रहे। तो लोड बैलेंसर क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट योर रिक्वेस्ट अमंग द एप्लीकेशंस। अब ये लोड बैलेंसिंग की भी अलग अलग एल्गोरिथम्स होती है, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम होती है, DNS बेस्ड होती है, IP एड्रेस बेस्ड होती है। तो लोड बैलेंसर लग गया कि अच्छा ठीक है, आपके पास यूजर्स का जैसे लोड बढ़ेगा तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी दोनों सर्वर्स में। 2 की जगह आप 4 भी लगा सकते हो उसमें। तो बट देयर इज अ लिमिट। अब तीसरा जो तरह का स्केलेबिलिटी होता है विच माइक्रो सर्विसेज थिंक टॉक अबाउट इज वो फंक्शनल स्केलेबिलिटी। कि आपने बोला कि अच्छा मेरे को आज तो ये मेरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन मैंने GP के लिए बनाई है, प्राइमरी केयर के लिए, अब मुझे सेकेंडरी के लिए भी लेके जाना है इसको, प्रोडक्ट को। तो नॉर्मली जो अप्रोच होता था पहले, वो तो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर बना देते थे, डिफरेंट मॉड्यूल्स, कि ये मेरा GP का प्रोडक्ट है, ये मेरा सेकेंडरी केयर के लिए, ये टर्शरी केयर के लिए। सो यू नीड टू स्केल द फंक्शनैलिटी, यू नीड टू ऐड मोर मॉड्यूल्स, या विद इन द मॉड्यूल यू नीड टू ऐड मोर फीचर्स। तो वो होता है फंक्शनल स्केलेबिलिटी। तो जो स्केलेबिलिटी NDHV की बात करती है तो दे सेज कि स्टार्ट स्मॉल बट स्केल फास्ट। तो ये बोलते हैं कि यू कैन स्टार्ट विद ए मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन वो स्केल अप होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। तो ऐसा है कि अब मान लो कि कोविड का एग्जांपल लेते हैं कि किसी लैब के अंदर नॉर्मल वो एक उन्होंने अपना एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है जो 1000 लैब रिक्वेस्ट पर आवर के हिसाब से हैंडल कर सकती है। अब कोविड आ गया, सभी को पैनिक हो गया एकदम, मतलब कि मेरे को भी हो सकता है, मेरे को तो एवरीवन इज गोइंग इन द लैब फॉर द टेस्ट, और 1000 की जगह पे 10,000 यूजर्स आने शुरू हो गए 1 आवर में। तो इसका एक ट्रेडिशनल अप्रोच होगा तो हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे कि भाई हम नहीं कर सकते, हमारा तो 1000 यूजर ही पर एप्लीकेशन पर आवर वर्क कर सकता है। थोड़ा बहुत रैम बढ़ा देंगे, मेमोरी बढ़ाएंगे, 1000 की जगह 2000 हो जाएगा। और दूसरा अप्रोच है कि डायनामिकली आपकी एप्लीकेशन ऑटो स्केल कर सके, कि अगर 1000 है वो 10,000 अगर सडनली हो गए तो आपकी एप्लीकेशन 10,000 यूजर्स के लोड को भी हैंडल कर सके। और वापस नॉर्मल हो गए, जब कोविड का कंडीशन खत्म हो जाएगा तो नॉर्मल 1000 हो जाएंगे, तो दैट मींस कि यू वांट ए ऑटो स्केलिंग फीचर। तो जितने भी क्लाउड वेंडर्स होते हैं दे प्रोवाइड द ऑटो स्केलिंग फीचर एंड वी कॉल इट इलास्टिसिटी, क्लाउड इलास्टिसिटी। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में क्या होता है कि डॉकर्स का यही फायदा होता है बेसिकली कंटेनर्स का, कि आपने अपनी इनिशियली 2 कंटेनर्स में अपनी एप्लीकेशन का मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिया। आपने अपॉइंटमेंट जो है आपका मॉड्यूल है
वो आपने 2 डॉकर इमेज फाइल्स बना दी उसकी। अब आपने उसकी जो बूट कॉन्फ़िग इनिशियलाइजेशन फाइल एक बना दी कि अच्छा मेरे को एक डॉकर क्रिएट करने के लिए मेरे को ये बूट पैरामीटर से चाहिए, एंड विच इज एक्सटर्नल टू योर एप्लीकेशन। अब सपोज करो कि आपके पास सडनली अपॉइंटमेंट जो है बढ़ गई, तो आपका लोड जो है पहले 1000 यूजर्स का आ रहा था, अब 10,000 यूजर्स का हो गया, तो यू नीड मोर कंटेनर्स, ज्यादा आपको मॉड्यूल चाहिए ना, एप्लीकेशन ये अपॉइंटमेंट के मॉड्यूल ज्यादा चाहिए अब आपको प्रोसेस करने के लिए। तो क्लाउड आपके पास ये प्रोवाइड करता है कि क्लाउड ऑटोमेटिकली जो होता है कि स्केल अप कर देता है उसको, तो उसमें लोड बैलेंसर्स भी होते हैं, दे कैन क्रिएट द कंटेनर्स एट द रन टाइम एंड दे कैन रीबूट इट यूजिंग योर बूट इनिशिएशन फाइल। उसमें आपकी एप्लीकेशन लोड हो जाएगी और डायनामिकली आपके एडिशनल नोड्स काम करने शुरू कर देंगे। और जब आपका लोड कम हो जाएगा तो जो आपके एक्स्ट्रा नोड्स बने थे वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो काइंड ऑफ स्केल अप स्केल डाउन ये आपका ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द डिमांड हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपकी एप्लीकेशन क्लाउड इनेबल्ड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन को होस्ट कर दिया क्लाउड पे बस हो गया काम, आपका आर्किटेक्चर उसको सपोर्ट करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर वी टॉक अबाउट एंड वी विल टॉक अबाउट इन द आफ्टरनून। तो सबसे पहले आपको स्टोरेज चाहिए, तो स्टोरेज सर्वर चाहिए और स्टोरेज चाहिए। तो अगर अमेजन की हम बात करें तो अमेजन में EC2 नोड हम सेट करते हैं। तो EC2 का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटर। सो इट इज काइंड ऑफ ए it's like your laptop on the cloud या your machine on the cloud। तो वो आपके लिए एक अलग से तो मशीन बाय करेंगे नहीं, उनके पास एक कंप्लीट सर्वर होता है, उसमें से एक छोटा सा पार्टीशन, एक कंटेनर या एक VM आपके लिए क्रिएट हो जाता है और आप कह सकते हो कि ये मेरी मशीन है। सो वी कॉल इट EC2। तो इसी तरह से और भी बाकी जो अलग अलग यूजर्स होंगे जिन्होंने क्लाउड में अकाउंट खोले होंगे, उनकी भी अपनी अपनी मशीन्स होंगी, एंड डायनामिकली इट कैन क्रिएट मोर EC2 इंस्टेंसेस अगर आपने इलास्टिक स्केलेबिलिटी का ऑप्शन लिया हुआ है तो। देन यू नीड ए इलास्टिक लोड बैलेंसर जो आपके डिपेंडिंग ऑन द डिमांड आपकी रिक्वेस्ट को बैलेंस कर सके इन द मल्टीपल कंटेनर्स। तो मिनिमम आपको, अगर आप अमेजन में एक अकाउंट खोल रहे हो तो यू नीड टू फर्स्ट क्रिएट ए मिनिमम आपको एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर सेकंड पार्ट आपको चाहिए स्टोरेज। तो मशीन तो हो गई आपके पास, अब आपको चाहिए स्टोरेज। तो स्टोरेज 3 तरह की होती है अमेजन के अंदर। फर्स्ट टाइप इज सिंपल स्टोरेज सर्विस, SSS, तो इसको बोलते हैं S3। ये जो S3 होती है ना, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, तो मतलब इट कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ थिंग। तो ज्यादातर जो हमारे लार्जर स्टोरेजेस होते हैं उसके लिए हम S3 स्टोरेज यूज करते हैं। तो जैसे मुझे आर्काइवल करना है, अब जैसे इमेज आर्काइविंग की बात आएगी कि इमेज कैसे आर्काइव करेंगे, तो इमेज आर द ह्यूज डाइकॉम फाइल्स। अब डाइकॉम फाइल्स का साइज भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो अगर आप ट्रेडिशनल स्टोरेज यूज करोगे, फाइल सर्वर स्टोरेज यूज करोगे, तो आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। यू कैन मेक सम लिटिल बिट प्रोग्रामिंग कि आप S3 में अपने क्लाउड फाइल्स को, इमेज फाइल्स को आर्काइव कर सको। तो S3 इज ए ऑप्टिमम वे ऑफ स्टोरिंग लार्जर डाटा। तो जनरली हम इसको बैकअप डाटा के लिए या आर्काइवल के लिए या इमेजिंग डाटा के लिए, डाइकॉम इमेजेस के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज वन मॉडल। दूसरी तरह होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, इसको हम बोलते हैं EBS। तो ये हमारे नॉर्मल लैपटॉप की तरह लेके चलो कि लैपटॉप में आपका एक मशीन है, उसके अंदर एक हार्ड डिस्क है। आप बोलते हो ना मेरी हार्ड डिस्क कितने साइज की है, 500 GB की है, 1 TB की है। हार्ड डिस्क आपकी अटैच होती है लैपटॉप के साथ। तो लैपटॉप में एक मदरबोर्ड होता है और एक हार्ड डिस्क होती है और बाकी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो आपकी जो हार्ड डिस्क होती है इट्स लाइक ए एक्सटर्नल ड्राइव, अ डिस्क which is connected to your machine। इसी तरह से क्लाउड के अंदर EC2 तो आपकी मशीन हो गई, स्टोरेज हो गया आपका इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज को आप अटैच कर सकते हो EC2 के साथ। तो ये आपको एक तरह का फाइल सर्वर की तरह दिखता, तो आपको C ड्राइव, D ड्राइव, ये सब ड्राइव्स आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, और देन यू कैन स्टोर एनीथिंग ऑन दैट। आप अपने डाटाबेस, अपनी एप्लीकेशन, कुछ भी स्टोर कर सकते हो। तो जब भी आप क्लाउड मतलब कि क्लाउड पर अपना अकाउंट बना रहे हो, तो मिनिमम आपको एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना होता है और एक आपको EBS उसके साथ अटैच करना होता है। तीसरा तरह का जो स्टोरेज होता है क्लाउड अमेजन में, दैट इज क्लाउड फ्रंट। सो क्लाउड फ्रंट एक्चुअली देयर इज अ वर्ड कॉल्ड CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आपने एक एप्लीकेशन बनाई,
एप्लीकेशन जैसे JSP, वेद टॉक्स अबाउट JSP थिंग, तो JSP में या किसी भी एप्लीकेशन में HTML फाइल्स होती थी, जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती थी, CSS इमेजेस होती थी, देन कुछ इमेजेस वगैरह भी आप डालते थे। ये इसको हम बोलते हैं स्टैटिक कंटेंट। अब आपने जैसे एक्सेस हेल्थ का वेब पोर्टल खोला तो आपको साइड में उसका लोगो दिखाई देगा, एक अच्छी सी इमेज आएगी निकल के, एंड देन लॉट ऑफ स्टैटिक HTML पेजेस दिखेंगे जिस पे आपने कुछ कुछ लिखा होगा। ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है कि स्टैटिक HTML फाइल्स हैं, लोगो की इमेज फाइल्स हैं, ये स्टैटिक फाइल्स हैं, दिस आर नॉट कमिंग फ्रॉम द सर्वर। तो अगर आप इसको भी सर्वर पे डाल दोगे, आप डाल सकते हो, तो आप ये सारे, तो एवरी टाइम जब आप एप्लीकेशन खोलोगे, वेब पेज खोलोगे, तो ये सारी फाइल्स आपकी सर्वर से लोड होंगी, तो आपका जो सर्वर और क्लाइंट के बीच का ट्रैफिक होता है, वॉल्यूम होता है, वो बढ़ जाता है। तो ये ज्यादा चैलेंज तब आता है जब आपकी कोई एप्लीकेशन लार्जर स्केल में यूज हो रही है। तो देन व्हाट वी डू कि ये ऑल स्टैटिक फाइल्स वी लोड ऑन ए डिफरेंट सर्वर, इनको हम एज सर्वर्स बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्वर्स। तो ये जो भी स्टैटिक फाइल्स हैं, इसमें आपके ऑडियो वीडियो टाइप की फाइल्स भी आ जाती हैं। आपको कोई आप साइट खोलते हो, उसमें एक ऑडियो प्ले करता है, वीडियो प्ले करता है, सो ऑल दिस फाइल्स, स्टैटिक फाइल्स, यू कैन स्टोर समवेयर। तो अमेजन के अंदर क्लाउड फ्रंट एक सर्विस आपको मिलती है जिसमें आप अपने सारे स्टैटिक डाटा को डाल सकते हो, एंड जो भी आपने वेबसाइट बनाई होगी तो ये स्टैटिक डाटा आपका सब क्लाउड फ्रंट से लोड होगा। राघव और एनीवन इन द एनालिस्ट टीम, थोड़ा टेक्निकल है तो प्लीज क्वेश्चन पूछो इसके अंदर। सर आप EBS एंड क्लाउडफ्रंट प्लीज फिर से एक और बार एक्सप्लेन करते हैं। देखो EBS आपकी हार्ड डिस्क की तरह है। जैसे आपका लैपटॉप होता है, तो आप दो ही चीजों में इंटरेस्टेड होते हो लैपटॉप में। एक सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आप बोलते हो कि मेरी मेमोरी इतनी होनी चाहिए, प्रोसेसर इतना होना चाहिए, और हार्ड डिस्क मेरी इतनी साइज की होनी चाहिए। अगर आपका बहुत ज्यादा डाटा आप स्टोर कर रहे हो तो आपका हार्ड डिस्क ज्यादा होना चाहिए। तो हार्ड डिस्क का मेरा मतलब, जब आप कभी भी अपना लैपटॉप खोलते हो तो आपको C ड्राइव, D ड्राइव, ये सब दिखता है ना उसके अंदर, और वो ये भी दिखाता है कि C ड्राइव में आपके लेटर से 500 GB है, D ड्राइव में आपका 300 GB है। तो ये स्टोरेज है। तो ये आप अपने ड्राइव पे क्या करते हो? अपने ड्राइव पे आप सारी फाइल स्टोर करते हो, जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो वो सारी आपकी स्टोरेज वहां पे होती है। तो उसी तरीके से जैसे आपका एक लैपटॉप है, उसमें जो आपका CPU है, जो मेमोरी है, ये आपका सर्वर साइड में है। तो उसके लिए तो EC2 आपका एक सर्वर मशीन की तरह काम करता है। ये आपका चाहे एक नोड क्लस्टर हो सकता है, डॉकर इमेज हो सकती है, वर्चुअल मशीन हो सकती है, व्हाटएवर, ये उनका इंटरनल आर्किटेक्चर है। बट इट्स अ मशीन फॉर यू, इट्स अ सर्वर मशीन फॉर यू। और दूसरा जो आपको स्टोरेज चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, दैट हार्ड डिस्क इज योर EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जो आपको अटैच करनी होती है अपनी EC2 इंस्टेंस के साथ। तो इसको जब आप अटैच कर देते हो तो आप ये फाइल सिस्टम की तरह आपको दिखेगी कि इसमें आप अलग अलग ड्राइव पार्टीशन बना सकते हो कि ये मेरा C ड्राइव है, ये मेरा D ड्राइव है, ये मेरा E ड्राइव है। इवन यू कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ ड्राइव पार्टीशंस। तो ये आपका एग्जैक्टली हार्ड डिस्क है। और क्लाउड फ्रंट जो मैंने बताया था कि क्लाउड फ्रंट होता है कि अगर आपका कोई वेब पेज आपने बनाया, उसमें बहुत सारे आपकी ऑडियो, वीडियो, स्टैटिक फाइल्स आपको डालनी है, जो पेज को लोड होते ही ये सारे जो चीजें आपकी फर्स्ट पेज पे दिखनी चाहिए। तो ये स्टैटिक डाटा जो होता है, HTML पेज, तो जैसे आप कभी भी लेटर से आपने एक ब्लॉग एप्लीकेशन बनाई, तो जब भी आप एप्लीकेशन खोलोगे तो ब्लॉग दिखेगा ना आपको। सबसे पहले ब्लॉग के ऊपर आपने वो प्रधानमंत्री वाले जो हम वीडियो चलाते हैं, जो हमेशा रन करते हैं, वो भी आपने डाल दी कि वो 10 मिनट का वो क्लिप भी चले। साइड में आपने लोगोज ही बना दिया एक्सेस हेल्थ की। तो ये सारा तो आपका स्टैटिक डाटा है। तो एवरी टाइम जब आप पेज खोलोगे, वेब पेज खोलोगे, तो ये सारी फाइल्स आपकी ओपन होंगी। So instead of loading it on the server, if you can install it on a static file server, तो वहां से ये सारा लोड इजी हो जाता है। क्योंकि ये क्लाउड क्या करता है कि आपके अलग अलग लोकेशंस में डाटा स्टोर करता है। अब मान लीजिए कि मैंने अमेजन में क्लाउड में अपना अकाउंट बनाया, तो वो मुझे ऑप्शन देता है कि मुझे मुंबई वाला डाटा सेंटर चूज कर सकता हूँ, या सिंगापुर का भी कर सकता हूँ, बाहर का भी कर सकता हूँ, दिल्ली का आई थिंक अभी है नहीं शायद। तो जहां भी जो डाटा सेंटर जो रीजन मैंने सेलेक्ट किया होगा, वहां मेरा डाटा होगा, और उसकी रिप्लिकेशन जो होगी, मतलब उसकी जो बैकअप्स वगैरह होगी, वो किसी अलग एक दूसरे लोकेशन में कर रहा होगा, ताकि अगर आपका ये वाला सर्वर क्रैश हो गया तो आपका डाटा सेफ है, वहां से वो रिक्रिएट हो सकता है। तो उसी तरह से मेरी जो फाइल सर्वर्स हैं, उसके लिए उन्होंने डेडिकेटेड वेब सर्विसेज बनाई हुई है, विच कैन बी यूज फॉर लोडिंग माई स्टैटिक डाटा।
तो ये हमारे आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट जो एप्लीकेशंस हैवी HTML फाइल्स और इमेजेस और ये सब लोड यूज करती हैं वो जनरली इनको यूज करती हैं। तो आकृति हुआ कुछ क्लियर या अभी थोड़ा कहीं और डाउट है? नहीं सर, हो गया। S3 जो होता है वो तीसरी कैटेगरी है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, रिलायंस जियो के लिए हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी पहले, तो उनके चले ही नहीं वैसे। तो उन्होंने कहा था जियो के साथ आपके एक ना डाइकॉम की एक एप्लीकेशन मिलेगी, एंड दैट विल काइंड ऑफ you can see your DICOM files and you can store your DICOM files. अब DICOM फाइल में प्रॉब्लम ये होती है कि CT, MRI ये सब बड़े हैवी फाइल्स होती हैं। इनको आप आर्काइव अगर नॉर्मल स्टोरेज पे करोगे, अगर आप अपनी फाइल नॉर्मल डिस्क पे अगर DICOM फाइल्स को स्टोर करना शुरू कर दो, तो हर एक फाइल आपकी 70 MB, 30 MB, कई बार 100 MB ऐसे होती है। तो आपका स्टोरेज बहुत जल्दी फुल होगा। तो इंस्टेड ऑफ ए ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, इफ यू कैन यूज ए ऑब्जेक्ट स्टोर, एंड ऑब्जेक्ट स्टोर में क्या होता है कि एनी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन स्टोर इन दैट। तो ये अमेज़न का एक फीचर है कि उसमें एक तीसरी तरह की स्टोरेज सर्विस होती है विच यू कॉल सिंपल स्टोरेज सर्विस। इसमें किसी भी तरह का कंटेंट आप डाल सकते हो, कंटेंट कुछ भी हो आपका, क्योंकि हर चीज वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। इसमें चाहे आप फाइल डाल दो, चाहे आप इमेज की फाइल डाल दो, चाहे ऑडियो डाल दो, चाहे वीडियो डाल दो, तो ये उसको स्टोर कर लेगा इन ऑप्टिमम मैनर। पर उसके लिए आपको अपनी एक सर्विसेज लिखनी पड़ेगी जो S3 में आपका डाटा स्टोरेज कर सके। तो ये हम ज्यादातर जो होता है आर्काइव्स के लिए, बैकअप्स के लिए या इमेज फाइल बैकअप्स के लिए इसको रिकमेंड करते हैं। तो ये 3 तरह के स्टोरेज स्ट्रेटेजी अवेलेबल होती है अमेजन के। बट एज ए नॉर्मल पर्सन अगर आप अकाउंट ले रहे हो अमेजन में, तो यू ऑलवेज नीड ए EC2 एंड EBS। बाकी 2 आपके तभी चाहिए जब आपको जरूरत है। The third thing comes is a database. अच्छा, वो आपका एप्लीकेशन बनानी है तो यू ऑलरेडी लर्न अबाउट डाटाबेस थिंग, कि डाटाबेस चाहिए, मेरे को MySQL लगाना है, मेरे को Postgres लगाना है। तो एक वे तो यही है कि मैंने EBS में अपना स्टोरेज ले लिया, अब मैं उसके अंदर अपना MySQL डाल रहा हूँ। तो मैंने अमेजन से कुछ नहीं किया, अपना मैंने MySQL या Postgres इंस्टॉल कर लिया। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इट। बट जो ऑप्टिमम एप्लीकेशंस होती हैं, तो कई बार दे थिंक कि अगर मैं अपना डाटाबेस लूंगा तो मेरे को डाटाबेस मैनेज करना पड़ेगा, मेरे को क्या कहते हैं उसका बैकअप और रेस्टोरेशन करनी पड़ेगी, डाटाबेस इंटीग्रिटी चेक्स मुझे रन करने पड़ेंगे। तो इफ आई कैन यूज इट एज ए मैनेज सर्विस, तो अमेजन में डाटाबेसेस के लिए RDS सर्वर होता है, विच इज कॉल्ड ए रिलेशनल डाटाबेस सर्वर। तो RDS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस सर्वर। तो जितने भी आपके ओरेकल, MySQL, Postgres, SQL सर्वर, ये सारे आपके रिलेशनल डाटाबेसेस होते हैं। तो ये सब एज ए सर्विस आपको मिलते हैं। तो एज आई सेड कि एक्चुअली होता तो ये डाटाबेस ही है, उसके डाटाबेस में आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी ना मल्टी टेनेंट फॉर्म, बट ये डाटाबेस को मैनेज जो है वो अमेजन कर रहा है, आप नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं। देन आजकल हम NoSQL डाटाबेसेस की बात करते हैं, MongoDB, सो मेनी अदर थिंग्स। तो अमेजन जो होता है एक अपना भी एक NoSQL डाटाबेस प्रोवाइड करता है, DynamoDB। तो NoSQL डाटाबेस में क्या होता है कि आप नॉर्मल टेबल फॉर्मेट में जो हम डाटा स्टोर करते हैं ऐसे ना करके, यू आर स्टोरिंग JSON फॉर्मेट में पूरा डॉक्यूमेंट आपने स्टोर कर लिया, एंड यू कैन स्टोर द एंटायर JSON डॉक्यूमेंट एंड यू कैन रिट्रीव द एंटायर डॉक्यूमेंट टुगेदर। तो जैसे फायर के अंदर ये ज्यादा काम आएगा। फायर के अंदर पूरा फायर का जो एक ऑब्जेक्ट है ना, पूरा एक डॉक्यूमेंट है, और पूरा डॉक्यूमेंट ही आपने डॉक्यूमेंट स्टोर में डाल दिया। तो NoSQL डाटाबेस इज बेटर रेदर देन कि आप पहले उसके पीसेस करके उसमें पार्सिंग करके उसके एलिमेंट्स निकालो, फिर सारे एलिमेंट डालो, पूरा फिर EMR डाटाबेस बनाओ। तो अमेजन का अपना भी एक NoSQL डाटाबेस मिलता है DynamoDB के नाम से। बट अगर आप अपना MongoDB डालना चाहते हो तो अपने EBS ब्लॉग पे आप अपना MongoDB डाल सकते हो, या कोई भी आपको डालना है। इसी तरह से एक आता है Redshift, अमेजन Redshift। ये Redshift उन लोगों के लिए होता है जिन्हें एनालिटिकल डाटाबेसेस चाहिए। तो यस्टरडे आई वाज टॉकिंग अबाउट एनालिटिकल थिंग। एनालिटिकल में आपको डाटा वेयर हाउस चाहिए होता है, वो एक तो बहुत लार्जर, तो जैसे आपको स्टेट लेवल पे डाटा वेयर हाउसेस बनाने हैं, अब मान लो कि वो अमेजन पे तो नहीं डालेंगे, वो तो अपने क्लाउड्स पे डालेंगे। तो अमेजन पे अगर कोई अपना डाटा वेयर हाउस बना रहा है तो ही विल लाइक टू हैव सर्टेन थिंग कि मेरे पास एक तो लार्जर साइज ऑफ वॉल्यूम ऑफ डाटा है, मुझे 1 ईयर का 10 ईयर का डाटा स्टोर करना है। दूसरा, मेरे को डाटा वेयर हाउसिंग मॉडल में स्टोर करना है एनालिसिस के लिए। नॉर्मल SQL वे में करूंगा, रिलेशनल मॉडल में तो SQL क्वेरी के थ्रू
जॉइंस इतने सारे होते हैं कि आप एनालिसिस के लिए डाटा नहीं रिट्रीव कर सकते. तो यू नीड स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा. तो बेसिकली ये सब ना करके मैंने वो अमेजन का रेड शिफ्ट परचेज कर लिया. तो इट अलाउज मी टू क्रिएट द मल्टीपल क्लस्टर्स एंड ऑन दोज क्लस्टर्स आई कैन लोड माई डाटा. तो स्टेजिंग डाटा जो भी चाहिए या डाटा वेयर हाउसेस बनाने हैं, एंड देन इट अलाउज मी टू रन द डाटा वेयर हाउस डाटा एनालिसिस क्वेरीज. तो ये सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है. तो सबसे बेस्ट एडवांटेज है रेडशिफ्ट का, ये पीटाबाइट स्केल का स्टोरेज अलाउ करता है आपको. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज 1 पीटाबाइट? पीटाबाइट इज लाइक, अब जैसे आप जीबी बोलते हो ना कि एमबी या जीबी, आप बोलते हो आपकी हार्ड डिस्क जो 100 जीबी की है, गीगाबाइट. फिर देन उसी तरह से आपका टेराबाइट होती है, एक्सा, तो उसी तरह से पीटाबाइट होती है. पीटाबाइट 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू 10 लाख जीबी. तो जैसे आप कहते हो ना 100 जीबी की हार्ड डिस्क है, 500 जीबी की हार्ड डिस्क है, ऐसे जब 10 लाख जीबी आप बोलोगे तो वो 1 पीटाबाइट होगा. तो अगर आपको उतने वॉल्यूम का डाटा स्टोर करना है तो उतने वॉल्यूम तक भी आपका ये स्केल कर सकता है अमेजन रेडशिफ्ट. यू कैन इमेजिन के पूरे स्टेट का डाटा वेयरहाउस बना सकते हो उसके अंदर. तो पीटाबाइट में तो होगा भी नहीं वो. सो इट ऑफर यू सम एनालिटिकल कैपेबिलिटीज. एनालिटिकल टूल कुछ उनके अपने एम्बेडेड टूल्स होते हैं, तो यू कैन यूज दैट. आप उसके अंदर एनालिसिस भी कर सकते हो. और इसके अलावा एक प्योरली एनालिटिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है अमेजन, विच इज कॉल्ड अमेजन इलास्टिक मैप रिड्यूस. तो अभी आजकल जितने भी एनालिटिकल डाटा वेयरहाउसेज, हम स्टेट डाटा लेक की बात कर रहे हैं, नेशनल डाटा लेक की बात कर रहे हैं, तो ये सब जो होता है बिग डाटा स्केल पर होंगे. तो वी नीड द हैडूप क्लस्टर्स एंड वी नीड द मैप रिड्यूस एल्गोरिथम्स. ये थोड़ा टेक्निकल है तो आई एम नॉट गोइंग दैट डीप इन दैट, बट ये हमारे डिफरेंट वेज हैं जो बिग डाटा को एनालाइज करने के लिए चाहिए. फिर उसके ऊपर आप प्रिडिक्शन एल्गोरिथम्स लगा सकते हो, मशीन लर्निंग कर सकते हो, एआई कर सकते हो. तो ये एनालिटिक कैपेबिलिटी, एडवांस कैपेबिलिटी जो है ये अमेजन में इलास्टिक मैप रिड्यूस सर्विस में अवेलेबल होती है. एंड प्लीज रिमेंबर कि ये सब मैनेज सर्विसेज हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर यू. If instead of creating my own analytical solution from scratch, I want to leverage their managed service, उनके Hadoop clusters को use करना चाहता हूँ, तो I can use their Elastic MapReduce. और इसी तरीके से कुछ वो एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे Amazon SQS है, which is your simple queue service. तो जैसे हम माइक्रो सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो आपने माइक्रो सर्विसेज बना ली, माइक्रो सर्विसेज का अपना डाटा हो गया, डाटाबेस है, उनको कम्युनिकेट कराने के लिए आपको काफका चाहिए होता है या RabbitMQ, कोई ना कोई मैसेज क्यू चाहिए होता है. तो या तो आप अपना मैसेज क्यू इंस्टॉल करो और मैनेज करो. अगर आप अमेजन का यूज करना चाहते हो तो SQS यूज कर सकता हूँ मैं उनका. इसी तरह से उनका SNS होता है, नोटिफिकेशन सर्विस. मुझे नोटिफिकेशंस भेजने हैं, ईमेल्स भेजने हैं, तो ऑल दीज आर देयर मैनेज सर्विसेज. एंड दैट इज व्हाई हम उसको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बोलते हैं, क्योंकि ये सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है. आपको डाटा वेयर हाउस प्रोवाइड कर रहा है, रिलेशनल डाटाबेस प्रोवाइड कर रहा है, एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा है, क्यू प्रोवाइड कर रहा है, नोटिफिकेशंस दे रहा है. दीज आर ऑल रिक्वायर्ड फॉर योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट. दीज आर ऑल प्लेटफॉर्म सर्विसेज. एंड फाइनली मोबाइल्स के लिए भी वो प्रोवाइड करता है, अमेजन कॉग्निटो और मोबाइल एनालिटिक्स. तो ये आपका मोबाइल डेवलपमेंट में. तो कॉग्निटो क्या करता है, जनरली आपको जो ऑफलाइन अपने एप्लीकेशन बनाई, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में आपको डाटा सिंक्रोनाइजेशन करनी होती है. आप हेल्थ वर्कर के लिए कोई एप्लीकेशन बनाई, हमने उनको ऑफलाइन आर्किटेक्चर दिया कि अच्छा अगर इंटरनेट नहीं भी चल रहा तो आप ऑफलाइन में अपना डाटा सेव कर सकते हो. लेकिन जब आपका इंटरनेट सर्विस अप होगी तो वो सारा डाटा आपका वापस सर्वर में सिंक होगा. तो ट्रेडिशनल मोबाइल एप्लीकेशंस में हमको ये पूरा लॉजिक खुद लिखना होता है, मैनेज करना होता है. सिंक्रोनाइजेशन कैसे करेंगे, आईडी मैचिंग कैसे करेंगे, ऑल दिस थिंग. तो अमेजन का जो ये मोबाइल अमेजन कॉग्निटो सर्विस होती है, ये आपको ऑटोमेटिकली ये सारे फीचर्स सिंक्रोनाइजेशन की प्रोवाइड करती है. और मोबाइल एनालिटिक्स इज जनरली यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द डाटा जो मोबाइल से आपका आता है. तो ये आपको ये भी बताता है कि ये वेबसाइट कितनी बार एक्सेस हुई, कितने यूजर्स ने एक्सेस की. तो काइंड ऑफ जैसे गूगल एनालिटिक्स होता है, वो गूगल में बताता है कि ये पेज इतनी बार visit हुआ, total access of your page. So any question here? No. So बस अब हो ही गया. तो लास्ट थिंग है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस क्लाउड थिंग.
So I'm going to talk about a little bit about the advantage and disadvantage. So one advantage is that I can make my entire thing on the OPEX model rather than CAPEX model. तो मेरा cost काफी कम हो जाता है. Instead of purchasing my own hardware, फिर हर 3 साल बाद उसको refresh करो. कुछ problem आएगी, engineers को बुलाओ. So instead of kind of managing and maintaining and purchasing everything my own, I can kind of use the cloud services. तो मेरा computer cost कम हो जाता है. Performance improved हो जाती है क्योंकि lot of things are automatically managed by the cloud services. जैसे load balancing, elastic load balancing is done by the cloud itself, which is much optimized way rather than we manage the load balancing. Software cost is reduced. सॉफ्टवेयर अगर अपडेट्स चाहिए, अगर आपने मैनेज सर्विस ली हुई है तो जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली क्लाउड हैंडल करेगा. आपके वर्जन्स चेंज होते रहते हैं. आपने MySQL लेट अस से 5.6 डाला, अब उसके बाद में अभी 8 पॉइंट समथिंग चल रहा है अभी. तो ये वर्जन अभी आप क्या होता है खुद जाके इंस्टॉल करो, फिर लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन थिंग्स यू नीड टू चेंज. ये सारे जो इंटरनल अपडेशंस होती है ये क्लाउड मैनेज करता है. इफ यू आर टेकिंग द मैनेज सर्विसेज, अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द. अगर आप पेपर यूज में वर्क कर रहे हो तो आपको अपर लिमिट की चिंता ही नहीं करनी. जितना आपका लोड इंक्रीज होगा उतना ऑटोमेटिकली वो स्केल करता रहेगा. एंड देयर इज नो लिमिट. इट कैन इवन गो टू द एनी साइज. देन इंक्रीज डाटा रिलायबिलिटी. आपका हमेशा डाटा का जो बैकअप होगा तो इट्स ऑलवेज रिप्लिकेटिंग टू द मल्टीपल नोड्स. अगर डाटा फेलियर हो जाता है तो आपका ऑटोमेटिकली जो उसका रिकवरी होगा, तो अगर आपका एक पर्टिकुलर VM क्रैश हो जाता है एंड इफ यू हैव टेकन द मैनेज सर्विस तो क्लाउड ऑटोमेटिकली क्लाउड वेंडर आपका पूरा एप्लीकेशन रिस्टोर कर देगा. देन लेटेस्ट वर्जन अवेलेबिलिटी, यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट एक्सेस, डिवाइस इंडिपेंडेंस एंड ईजियर ग्रुप कोलैबोरेशन. तो ये सारे तो एडवांटेज में आ जाते हैं. डिसएडवांटेज क्या है इसके? सो वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस कि मोस्ट ऑफ द सर्विसेज ऑन द क्लाउड आर require some kind of internet, क्योंकि cloud is a remote location. अब उसके और आपके बीच में कनेक्टिविटी तो चाहिए ना. It's not in your local network, local area network में नहीं है, LAN में नहीं है ये. It's on the internet. तो internet availability is must, number one. अगर आपके low speed connections हैं, low bandwidth problems हैं, बीच का internet अगर आपका slow है तो lot of services give the problem. फीचर्स माइट बी लिमिटेड क्योंकि जनरली क्या होता है कि इफ लेट अस से आई एम काइंड ऑफ इंस्टॉलिंग समथिंग एंड मैनेजिंग इट, तो आई कैन ऑप्टिमाइज द फीचर्स एज पर माय रिक्वायरमेंट. मैनेज सर्विसेज में कई बार होता है कि दे आर प्रोवाइडिंग सर्टेन फीचर्स पर उनको कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है हमारे लिए. तो वी कैन नॉट काइंड ऑफ कस्टमाइज इट एज पर अस. अभी कभी भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वो आपको 2 मोड बताता है. जैसे MySQL मुझे डालना है अपने मशीन पे, तो एक तो वो बोलेगा फुल इंस्टॉल और एक बोलेगा कस्टम इंस्टॉल. फुल इंस्टॉल का तो मतलब ये है कि उठा के मैंने देखा नहीं, सीधा उठा के डाल दिया, सारा कुछ लोड कर दो. कस्टम इंस्टॉल में आई कैन गो एंड सेलेक्ट कि मुझे ये फीचर चाहिए, ये फीचर चाहिए, ये फीचर चाहिए. तो आई कैन, इट्स लाइक अ पिक एंड चूज. लेकिन मैनेज सर्विस में वो ऑप्शन नहीं है मेरे पास. मैनेज सर्विस में एवरीथिंग इज डन बाय देयर इंटरनल थिंग. तो उसमें कई बार फीचर्स लिमिटेड हो जाते हैं मेरे लिए. समटाइम स्टोर डाटा कैन बी लॉस्ट. हालांकि AWS या Azure में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बट जो लोकल क्लाउड्स होते हैं उसमें कई बार प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो प्रॉपरली डाटा को रिप्लिकेट नहीं कर पाते. एंड समवेयर सिक्योरिटी को लेके भी कई लोगों का इश्यू होता है कि मेरा जो डाटा है वो कैसे मैनेज हो रहा है इंटरनली. तो दिस इज काइंड ऑफ नॉट ट्रांसपेरेंट टू देम. तो वन ऑफ द थिंग इज कि डाटा रेजिडेंसी का एक इशू है कि अमेजन का डाटा इंडिया के अंदर ही होना चाहिए. दे शुड नॉट बी स्टोरिंग इट आउटसाइड द कंट्री. तो दिस इज वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ डाटा प्रोटेक्शन एक्ट कि डाटा रेजिडेंसी अभी बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री आपका डाटा अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस नहीं होना चाहिए. इवन इफ देयर इज ए रिक्वायरमेंट तो दैट शुड बी ऑथराइज्ड. तो क्लाउड में कई बार ये भी चैलेंजेस होते हैं कि अमेजन का डाटा वो कहाँ रिप्लिकेट कर रहा है, यू हैव नो कंट्रोल. हालांकि अब क्लाउड वेंडर से बोलते हैं कि डाटा रेजिडेंसी इशू नहीं आएगा, वी विल मैनेज कि आपका डाटा इंडिया की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, बट स्टिल इज काइंड ऑफ अ ब्लैक बॉक्स काइंड ऑफ थिंग. सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड.
But rest apart, आजकल ज्यादातर एप्लीकेशंस जो क्लाउड पे आ रही है और NDHB is clearly talking about the cloud application. They are talking about cloud first strategy. And ये सब leverage करने के लिए इन फीचर्स को आपको सिर्फ ये जरूरी नहीं कि एप्लीकेशन अपने उठाई और क्लाउड पे डाल दी, वो नहीं चलेगा. अगर आपको ऑटो स्केलिंग करना है तो आपका आर्किटेक्चर क्लाउड के हिसाब से होना चाहिए जो इन फीचर्स को यूज कर सके डायनामिकली. अगर लोड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो डिपेंडिंग ऑन दैट योर एप्लीकेशन शुड आल्सो बी सपोर्टिंग इट, एंड दैट इज व्हाई माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर प्ले अ बिग रोल. सो आई विल टॉक अबाउट दैट इन द आफ्टरनून सेशन. सो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? So that's all. Yeah, thank you, Prashil. Yeah, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.